coming in and killing everyone from it. Yeah, I'm surprised there's no one actually taking care of that area. This has happened. This is the 4th time, I believe. Yeah, I think it's the 3rd or 4th, and I think at this point they should start considering putting a little bit more utility on it. Maybe Probably Chulo can cover that. Exactly. I really think so. And so now they're gonna call a timeout. Oh, it's not them. It's actually VLT. I think it's good. I mean, there are some teams, they just want to make sure on round 10, they want to make sure they can just cover all their avenues or the angles, just close off the game. We have seen some teams. I mean, we saw VLT before, I believe, with Oblivion Force go all the way out to round 10. Then suddenly Oblivion Force took so many rounds and they weren't able to close it. I think they want to prevent that from happening if possible. You're absolutely right. I think VLT, they just want to slow down the pace, but I think a tactical timeout like this actually might go into South Build's favor. Because they're trying to think, I guess, South Build now gets a little bit of time to think what went wrong in the previous rounds, whereas VLT, they can just keep pulling their and really driving home that game. It's already 10-8. Velocity, fantastic position. They cannot be too careless, however, because still, there's only 2 rounds away for a tie for South Build, and their money isn't fantastic. VLT can probably afford another buy if they lose, but if they lose maybe 2 more, if they get to 10-10, they'll probably be forcing an Come on, dude, come on. Ek match to aayega. Right. South Build needs to do something to make sure that they stop this momentum coming out from Velocity Gaming. The thing is, even if they take a few rounds, Velocity just takes another double. That's just how they are. They're just so good at maintaining that heat that comes in. Either way, VLT is still going to be playing taking their time here. And look at that tree. Still no one taking care of it. I think this is one of the 2 options that South Build can do. It's right. Yeah. Either you give it up, just completely stop with it, and just leave one person on A site. To be honest, इतना कोई hard नहीं है. VLT आराम से जीत सकती है यहाँ पे. मुझे तो ये नहीं समझ आया ये लोग हारे कैसे. मैं कल का मैच देखा 7-0 की लीड है इन बंदों के पास. घुस के मारा इन लोगों ने. मैंने जहाँ तक देखा 7-0 की लीड थी. ये हारे कैसे? I have no idea. मैंने मैच नहीं देखा, पर जहाँ तक देखा 7-0 था. कैसे हार गए लोग 7-0 से? डूड 7-0. मतलब घुस के मारा. जी बाहर है. But the question now is, will he get him? Yes, he does. Deathmaker out of the way. That's one big problem. But Vibor, if he actually checks this, that'll be the end of that. Vibor aggressively pushing forward. He does have knives here. We'll just basically just pass each other. Oh my god, they just brushed shoulder. Are you kidding me? The plant will be going through right now. Vibor ने what to do for the lineups here. उसको घुमा दिया. Vibor so happy, walks straight into that lineup. But it wasn't planned. 2 बंदे नीचे मत बैठो. That was very close here. I thought Aziz actually had that, but like you said, they brushed shoulders and they brushed so close to death. LFF spotted his shoulder out. Oh. The lockdown. नहीं वो बच गए. Special. वो बच गए. Sign seal delivered here towards A main. मत pick करो. It's not really going to help them clear Don't up pick, the site. please don't pick. Diligent with it. Now Flippy, they're already in on it. How can this play out? Now it's right to Oh, okay. Matarasu follows up. Papi Chula trades. Now it's a 2v3 with time ticking away. Papi Chula all alone can do it. 11 for Valo. निकल बहन जो. भाई बढ़िया भाई. And South Build will look rocked. I am just so shocked. They are not scared of the सारे मार रहे हैं. special. Look at that. But the problem कोई now carry नहीं हो is रहा था. that because they're able to be so aggressive. राइट टू इसका पता नहीं क्या सीन है. जब इंटरनेशनल टीम के साथ मैच होता है वो बंदा बहुत स्टेप अप करता है भाई. On the lockdown and they say okay, let's wrap it up before lockdown. मैं जो अपनी कंट्री वाले मैं जो इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करो. तुम यहाँ BGMI वाली हो छोटी बातें कर रहे हो. करोड़ों की बात चल रही है तो तुम छोटा गिनाने आ गए यार. They need to figure it out. It's 11-2-8. They're only 3 behind, but the problem now is we're on round 11. Well, it is still Twitch 3 पे भी rounds that separates these 2 teams, and South Build now are facing a conundrum. SB का टाइम आउट है और ये कुछ करने का ट्राई करेंगे. He can't afford an operator, and everyone else can sort of put together a scrappy buy. I do imagine that they will probably be मुझे वो over time. मुझे dude like because नहीं समझ आया कल ये 7-0 पहला मैच भी देखा मैंने. लाइक मैं जहाँ तक देखा मैंने रिप्ले 7-0 की लीड थी वेल्टी के पास. How can they lose? How can they lose, dude? Like घुस के मार रहे हैं उस टीम को. उन्होंने इतना कैसे स्टेप अप कर लिया कि 13 राउंड जीत गए इनके आगे.
is another question in itself, because he has been absolutely great in making that much needed space for his team as well. Vibor just great with just playing sneaky, just catching people off guard, and Amaterasu's suppresses just so good. For now, Flippy gonna try and get something out Oh, of 45 that. HP. Straight dab smack उसको हल देनी पड़ेगी. to that lineup for the shock darts. Just so unlucky right now. No heals for them, for both teams actually, but looking really good for Southfield. Now Ja, that peak does give him a little bit of information that at least Vandal one की first person bullet that accuracy नहीं है Paranoia Vancho. is now out. Smokes as well, if you think about it. And they're not worried. Shock dart will give them that space. But Ja will be finding Vibor, but यार. Right finds Ja in return. Pro finds ठीक है. Hell FF. But he doesn't know there's still one more person up there, and that's right to Ace. For now, he'll be checking the corners here, but look at that. No way. The crossfire coming यार दो बंदे through, रह गए वो. and suddenly it's a 2 versus 3. Southville Deathmaker Esports है has the अभी. numbers, but can they actually hold it? No way, no way Pro still gets one before he goes down there, and they even ping that location. So now Okay. it is वहाँ से खेलना that मुश्किल है. like you mentioned, guns blazing for Aziz as he peeks on one, he gets a double, and that's the last 2 players. अंदर से खेलना बहुत Standing मुश्किल है. VLT removed from the equation. They win that thrifty round as Velocity will. मेरे को ये जो लेन है ना, ये वाली जो लेन है, will be seeing जहाँ पे Southfield take VLT के 11 बंदे to मरे हैं, 1 जहाँ पे with ऊपर, And जहाँ पे free हलफ मरा है. guns! Yay! free guns. ये लेन पे Exactly, pick up मेरे को 2. हमेशा जिंदगी में मार ही पड़ी है. यहाँ पे मेरे को हमेशा मार पड़ी है. यहाँ पे जब मैं पीक करता हूँ मार्केट, मेरे को तब भी मार ही पड़ी है. हमेशा मेरे को मार पड़ी है. One get for free. Yeah, that's I just right. realized that. I'm sorry. I just realized they bought one. मेरे को right बहुत now, मार पड़ी है got उधर से. two for free. For real, Asian. that's exactly it. Looking so good. When you think that Velocity was on heat, suddenly Southfield was like, I feel kind of warm right now. Nope. Especially after timeout. But if SBE can keep going, they can make it at least to the timeout. I mean, Beta overtime, do as you yaar. mentioned. LFF gonna be revealed at least. They do know one is at least on B main. Whoa! Love those lineups coming in from the side of Pro. He was definitely forced back on that, and so really good job from Pro to force ठीक back है. anybody playing for B main. डेथमेकर ने कॉम्स तो दिए हैं. Okay, well, whose first theory is that? That was That is Pro's. Pros. He sees one. I think he doesn't, Ganda he doesn't ult. get the tag. Speculative effort. Just maybe a little inquisitive for information. मेरा ult there, मारा but इसने. Ja Deathmaker's playing here. close. Oh no, he Oh, misses. He gets out 12 of it, HP. but Ja's low. Cannot be healed as the Hunter's Fury does come out for the response. Papi Chula finds Amaterasu. And it's going to be Flippy to hold the line right now. He gets कहाँ पे another one, देख a रहे हो double यार? for him. Flashing in through. He'll be flashing for himself, but already the offense has fallen back, staving off the push. Yep, that's right. Heals will be coming for Ja at least, but यार Deathmaker होता है, gonna be कभी-कभी दिन नहीं passing the होता. spike away. कभी-कभी He off needs day some रहता है, space dude. for his teammate. Still definitely पर अगर off day दिन वाला possible. तुम्हारा मैच है, तुम Actually, जीतोगे. it's possible, but it's also very impossible. Either way, 12 HP is all he has to work with. He is going to be trying going in, but it will be Flash, has to look away from that. But look at this, he sees someone there. They do दो know बंदे someone हैं. is at हो tree. जा Ja रहा है. gonna go aggressive here, right to Ace from the side, trying to get some information, or at least trying to flush them out from the little corners there. Aziz from the top side gonna jump down. Ja finds right to Ace, but Deathmaker finds Aziz in turn. But thankfully, Flippy with the 3K, tying things up. Brings them to 11-10, finally catching up. I think this does reset the economy here. No, there's still one more buy for the Velocity. VLT वाले Barely. ओपनिंग बहुत I think बेहतरीन that करते हैं Baker लोग. might drop for help. VLT. No, there is a buy because of the. VLT की हमेशा की प्रॉब्लम है, एंड में चोक होता. Wow, how The chamber dare does have. you. No, it's true. The chamber. I'm भाई just kidding. जब एक बंदा मरा, Getting them some. जब हलफ मरा तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ पे बंदा है. That's how us तुम heaven क्यों देख रहे हो? agents like it. Whenever we buy a mouse, we expect यार to see कॉम्स का ये mouse सीन back रहता है, too. उसको That's बोलना how it चाहिए goes. था. But you wanna play, Free है let's एक बंदा. play. Who's the one that will be caught out is the question. For now, Deathmaker going on the aggressive here. There is an Odin from the side, but does get anyone, not quite. Deathmaker just a little bit faster, but Aziz finds Deathmaker in return. Hell FF does find and Aziz as well. Flippy from the side. Look at all these trades एक बंदा coming in. रहा. Suddenly it's a 1 versus 2 situation. But can they get the revive? Oh, spike With गया. that beautiful wall bang, and suddenly all he has to worry about is just one bar person called called Hell FF. And Oh, now wait, he's wait, pushing with he's an हलफ स्नाइपर नहीं है. but he's pushing with an off. मुझे पता है हलफ स्नाइपर नहीं है. Timing. Just can't get it down. Ja wins it. वो नहीं निकलना था हलफ से. हलफ स्नाइपर नहीं है. Just the patience play from Ja. Absolutely perfect. Why did he switch? He switched because
he wanted to find the pick. He wanted to go aggressive, and it's so वैसे hard वहाँ to do that आपसे in the Tour de Force. It's true. इतना डीप एंगल क्लियर होता भी नहीं है That everything was just happening at और वो entrance. ऑपरेटर खेलता भी नहीं है And Zhao was like, do I want तो वो गन पे kill कंफर्टेबल था, उसने गन निकालने की ट्राई करी, Nah, बैड लक हो someone's गया था. riding him. That was a great Spidey awareness from senses. Zhao with a wall bang. Yeah. That's just, that gets, I think that kill, that wins him the round right there. Right, that was a big move. Come on, For boys. Sure, Deathmaker again has knives. Try to make some space here through mid, and right now I love the fact that they're just trying to play as a अरे वो कंफर्टेबल नहीं था भाई उसके हेल्थ से, Nanoswarms are gonna give them some ऑपर space. थोड़ी है वो. They are all very, very aware that there उसे are गन निकालने का people ट्राई करा who डीप are एंगल on क्लियर the करने के लिए. side, the rotates coming in. बैड The लक हो others गया. are south built. For now, Deathmaker gonna find another way here. They don't want to play right into south built's hands. Hell FF, I don't think they spotted him. Aware that it's, oh, now they spot each other. Great flash. Does come in. I think he gets out. He does get away. The teleport does come through for Hell FF, and he ठीक है, does उसके manage पास to इन्फो escape. है. With his tail tucked between his legs. Now, it's towards A short they go. Where they found success previously, that's where they're going to head again. Deathmaker with a blade storm. Can he open it up? चोक डेथमेकर चोक कर रहा है. डेथमेकर चोक कर रहा है, मतलब टेंस है बहुत ज्यादा. वो टेंस बंदा नहीं खेल सकता गेम. कोवैक में भी जब तक आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो, आपका स्कोर आ ही नहीं सकता. Things look so grim for VLT. He does get one, but Flippy has ये his तो own side. डेथमेकर वो कर रहा है, मतलब पैनिक कर रहा है वो. 12 as BE just needs one round to end this clean, so they don't go into an overtime, because overtime is when your mental gets Panicked. really tested. हेलो डेथ गॉड हेलो. South built. That wasn't eco round, but it still came a little bit closer. पैनिक कर रहा है, उसका पूरा पैनिक दिख गया. उसने पहले फायर करा, जैसे डेथमेकर रैंक में खेलता ना, बिल्कुल क्रिस्प. वो पैनिक कर रहा है यहाँ पे, पर उसको समझना पड़ेगा पैनिक करके कुछ होगा नहीं. कोवैक में भी ये सीन होता है, थोड़ा सा पैनिक करो तुम्हें पता लग जाएगा तुमने कहाँ गलती करी है पूरे सिनेरियो में. VLT वाले पैनिक कर रहे हैं. Yep, that's right, Deathmaker. Get with the aggression, but Papi Chulo with the sprays. He's not scared, even he's blinded, but for now, Madrasu will be fighting him back into turn. Aziz making sure that B-main will be clear immediately. Gonna reposition himself to look at market. Check it. Back here. Will he get some backstabs is Khatam the game. question, but Pro finds however Aziz beautifully played, and suddenly South built last minute manages to bring it up to round 13, sealing the deal 1-0. मैं इतना बता सकता हूँ कि जब कोवैक में मैंने एक ही चीज सीखी है, if you are tensed, yeah, if you are trying too hard, आपका नहीं आएगा. पर जब आप बिल्कुल चिल होते हो और पूरा कंसंट्रेशन देते हो, तब आपका स्कोर ज्यादा आता है. VLT वाले चोक कर गए एंड में. चोक भी नहीं, पैनिक बोलते हैं उसको, सीधा सीधा पैनिक करे. Velocity, I do have to give big massive props towards Deathmaker, who was fantastic at opening sights up. यार रैंक खेल के कोई फायदा नहीं है, अगर तुम मेजर जगह में पैनिक कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का. Of Deathmaker, but however, it is the stats that we are going to be looking at. Let's take a little bit of a glimpse. होता है यार, पैनिक तो करता है बंदा. Statistical perspective. They are professionals यार. मेरे ऐसा बंदा कर सकता है पैनिक. Like, but these are professional guys. They're gonna give it to you, Illustrato. 19 for Deathmaker. अगर कोई मेरे ऐसा बंदा पैनिक करे वो समझ आता है. I really think that in These terms guys are of professionals VLT, they have really they good have to plays. play They have under really, pressure, really like good setups. They love to play in the smokes, but SPE was just a little better at the adaptation. अब क्या होगा मैं बताता हूँ. लाइक मैं भविष्य देख सकता हूँ. लीड बन गई है, ठीक है. लीड बन गई है इनकी. VLT और प्रेशर में है. अब दूसरे वालों को प्रेशर नहीं है, उनको सिर्फ एक मैच निकालना है. VLT ये गया, VLT बाहर. अब VLT वालों पे और प्रेशर होएगा, ये प्रेशर के अंडर खेलेंगे. अभी स्टार्टिंग में पता लग जाएगा क्या होएगा. अगर उन्होंने पहले निकाल लिया राउंड खत्म गेम. मैं सीधे बता रहा हूँ, अगर VLT ने पहले राउंड नहीं निकाले खत्म गेम. Doo मिनट आ रहा हूँ बर्तन छोड़ के.
but they put up the big W's at the very end of it all. Yeah, that's right. Look at the highlights here. I mean, while it started off really, really good, that was a great play by them. They walk out with the abilities. We've seen that so many times. But then you saw Vibor as well. As I said, the ability usage was so great. But the thing is, at first, it felt like Southfield Esports wasn't able to come back around and figure that out. Like, how are they playing around with the abilities? But then suddenly, you see Aziz finally get warmed up and he starts freaking out. And then suddenly the whole team followed suit. You have to really give it props to them because when you think about it, Papi Chulo does hold the line at the end of the day. He does bring the Vibor खतरनाक खेल रहा है, like Vibor has But I stepped would in. say if you put side by side Vibor and Papi Chulo, I did ask in the beginning about डेथमेकर यहाँ कितना क्रिस्प खेल रहा है, एक नाइफ मारी है डेथमेकर ने, बट वहाँ पे केजे पे विफ कर रहा है, डेथमेकर ने एंगल अच्छे से क्लियर नहीं करा। They're very much tied. I do think that Vibor had a great start, but I think Papi Chulo peaked a little bit higher in this game. Papi Chulo did a little bit better. He got a lot more clutches and a lot more openings. Defensively though, Vibor was just phenomenal. Even on the Omen, he was doing the work of a sentinel. So really great job from Vibor in that last फाइनल ओ तेरी हो तो yeah, Papi Chulo is इतना खोल दिया भाई उसने। He's just always good, and I think he's the most consistent player on the Southfield side every single time. I absolutely have to. Vibor कुछ ज़्यादा खतरनाक खेल रहा है भाई। He was getting picked off so early. उसका confidence बहुत बढ़ गया है, like. But one thing I do have to say is that Vibor बहुत खतरनाक खेल रहा है। With Southfield Esports, they will punish you for it. There's just so many moments where. ओ देखो उसको यहाँ देखना था, ट्री से मार पड़ रही है। वो स्मोक, I think he was smoking। तभी पड़ गया उसमें। But वो कॉल आनी चाहिए थी कि एक ट्री से पड़ा है। भाई वो शेरिफ से पैनिक करके मार गया हलफ को। Like well played right there. We took a look at the अगर उसने पहली शॉट में मारा था ना हलफ को लेन पे तो था, पर वो पैनिक कर गया था। It's going to be game number 2. Southfield in the lead after stealing away the match from what was essentially Velocity's game for the majority of the game. Well, let's talk about that when we return from this again. Illustrato and Tash Bunny, where your casters here today. We'll be back in just a jiffy. पैनिक मत करो यार, अपना चांस लो। मतलब कम से कम तुम्हें ये तो रहेगा ना कि तुम पैनिक नहीं हुए थे। अगर ये होगा तो फिर एंड तक ये रहेगा साला, अगर बाहर हो जाते यार मैं पैनिक कर गया था इसलिए मैच हारे, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मैंने तो यही देखा है जितना गेम खेला कि अपना टाइम ले लो, तुम जो करना है करो। पैनिक करके मरते हो ना फिर गुस्सा भी आता है खुद पे, लाइक इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर पैनिक क्यों हो रहा हूँ। अभी पता लग जाएगा लाइक अगर इन्होंने पहले निकाल ली एसबी वालों ने ख़त्म गेम, क्योंकि मेंटल प्रेशर पड़ गया। और ऊपर से मेंटल प्रेशर भी ये पड़ा है कि अब हारे तो बाहर है पूरी सीरीज से। अभी मेंटल प्रेशर भी ये पड़ेगा और वीएलटी पे वो ज़्यादा पड़ा हुआ है। और प्रेशर के अंदर बंदा टेंस होता है, थोड़ा सा भी टेंस हुआ मसल्स आपके हाथ उस तरीके से काम नहीं करेंगे जैसे चाहिए। और ये गेम प्रिसीजन बेस्ड गेम है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर करा आपने, एक गोली मिस करी बंदा नहीं मिस करेगा आपका अपोनेंट। देखो यार अभी हो सकता है बीएलटी का मैप वैसे खेलते तो ये लोग ही यही वाला। अब देखते हैं सेकंड मैप कौन सा आता है। लाइक एम वाइज नहीं, गुड नहीं बोलूँगा मैं। वैलोरेंट में एंगल क्लियरिंग अच्छी हो तो खात्मा हो जाता है, एम बहुत कम चाहिए, इतना नहीं। एंगल क्लियरिंग तुम्हारी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, जैसे तुम क्लियर कर रहे हो एंगल वगैरह, वो बहुत मैटर करता है। जितना मर्जी एम ले लो तुम, जो एंगल क्लियर करने में अच्छा होगा वो तुम्हें पहले मार देगा, क्योंकि एक गोली पड़ती है रोज। इसमें ये नहीं है स्प्रे करना है बंदे पे, एक गोली। मार रहे हैं यार ये लोग भी, क्या करें होता फक। मैं बस ये चाहता हूँ ये डर के ना खेले, बस फाड़े यार
फाड़ो मैं बस ये चाहता हूँ फाड़ो तुम यार घुस के एस मार मैं तो डेथ मेकर मुझे कोरियन जेट वाला एस चाहिए एपेक्स का ई स्पोर्ट्स डूड वो तो भूल जाओ तुम वैलोरेंट में तो फिर तुम पहुंच जाओगे वर्ल्ड नंबर 1 पे वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है डूड उसके लिए एक बंदा नहीं उसके लिए तीनों बंदे बहुत खतरनाक चाहिए यार बीआर है वैसे बीआर में ये तो नहीं होता कि लाइक 2 टीमें लड़ रही हैं और एक को चांस मिलेगा बीआर में फिर उतरते हैं फिर 20 स्क्वाड्स इसमें 20 स्क्वाड उतरते हैं अब उसमें कुछ भी हो सकता है बीआर में लाइक भाई मैं सेंटिनल वालों में किल देख रहा था वो साले हाइपर अग्रेसिव बंदे हैं वो सेंटिनल वाले कुछ ज़्यादा अग्रेसिव बंदे हैं उसमें सेंटिनल बहुत अग्रेसिव है उसमें सेंटिनल्स वो साले मतलब फाइट लेने की खुजली वो कहते हैं चैंपियनशिप थ्रो करनी है कर देंगे फाइट लेनी है भाई उस गेम में फाइट लोगे थर्ड पार्टी हो जाएगा वो साले करते फाइट है deeper into summer and the summer gets scorching hot so do the games in a 1-0 right now South built do lead clawing away from the very bottom from such a wide gap they managed to overtake velocity game number 2 is nigh and there's still another chance here for the South Asian team the last representative of the region to hold true against the last representative of the Filipinos so this is all about destiny for the 2 remaining players. Let's now begin to break it up. You are with me here today, Illustrado. यहाँ जीता तो ऊपर और भी खतरनाक टीम है मतलब. That was absolutely so good coming in for both teams. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. South Build sometimes loses a whole map before they warm up. But this time around though, I think they're taking it pretty seriously. Sentinels ये नहीं Sentinels भाई. ये वाली Sentinels नहीं कह रहा मैं वो कह रहा हूँ जो Apex में Sentinels है लू वगैरह. It's a heart attack. It is. Okay, when you're a South Built fan, all I can say is get ready for that adrenaline. Get ready for the scare of your life as they kind of just claw off the edge. And just kind of bring you back on top. That's how they played in the Philippines. साल से कुछ नहीं होगा dude like साल तुम 10 और ले लो. That's the story of the whole thing. Either way though, their warm up is साल से कुछ नहीं होगा. Like जब मैं मुंबई से गया था ना like मुंबई से मैं जब मुंबई के गोल्ड से गया था यूरोप में like सर्वर चेंज करते ही ना मैं ब्रॉन्ज में था उसमें मेरे को पता लग गया था सीन का लेवल कहाँ पे है मतलब अगर बहरीन का प्लैट खेलना हो ना डूड मैं सीधे कह रहा हूँ मुंबई वाले तो कुछ भी नहीं है मुंबई वाला प्लैट मैं कह रहा हूँ बस जाए एक बार बहरीन मुंबई वाला डायमंड जाए एक बार बहरीन वो भाई अलग ही मार पड़ती है उधर मैं जब वहाँ खेल के आया लाइक बहरीन में मैंने एक मैच मुंबई खेला आई टोटली कैरिड मियंस का एक मैच सिंगा खेला भाई वो तो 3 बंदों को तो किल ही नहीं लेने दिए हमने 2 बंदों ने पकड़ के मारा मैंने और उसने तुम मानोगे एनिमीज के 4 किल थे कल के 25 किल थे जेट से रूट तू सोचो क्या मार पड़ रहे होगे worried or too greedy. तोड़ के रख दिया था So velocity needs to work on that momentum. रीजन का सीन भी होता है बट फिलिपिनो वाले भी आई थिंक इधर ही खेलते हैं once South Built just comes इसी रीजन में खेलते हैं I wouldn't say the right word is choking. वैलोरेंट का सही सर्वर तो है नहीं है I think the right word is just more outplay from the side of South बट मुंबई से बेटर मैं बोलूंगा अपने से बेटर वो वाला बहरीन वाला जहाँ पाकिस्तानी खेलते हैं not by any means because they were लो लेवल पे वो बहुत खतरनाक है मतलब बहुत खतरनाक है अगर तुम गोल्ड वगैरह में मुंबई में खेल रहे हो तो तुम बेवकूफ हो This is just what I saw. It came down to 11-13. This was not it was very close. It was very close. All I can say is it's literally who was a little bit faster on that first contact, who was a little bit better in terms of hiding, just a little bit, because there are so many rounds where it was so close, and you saw at least Vivor like coming up on top with just sliver of health left. Either way, both teams are just perfectly I would say equal in terms of how they play, but South Built I do know there's one big flaw.
they don't know when to start Death covering maker that step big up crack नहीं कर रहे in their ले defensive. And one thing about Velocity is that they will do the same thing over and सिंगापुर over में भी 30 बंदे आ until गए you dude stop. Yeah, and at some point, like स्कल इमॉर्टल था सिंगा में खेलता था बट उसने सीधा बोला उसने स्क्रीम भी खेलनी है जो स्क्रीम्स रहती है स्क्रीम्स वो भी खेलता था वो बट उसने सीधा बोलता जो बहरीन प्लेट है ना वो मुंबई का इमॉर्टल भी नहीं है ना सिंगा का इमॉर्टल है जो बहरीन का प्लेट है मतलब तुम प्लेट खेलोगे तुम्हें पता लगेगा क्या है क्या नहीं I think we were talking and we were listening to the panel just like right मार के चलेगा this, बंदे most people on the panel agreed that map 1 should be going to Velocity, and I think and I honestly think South Built weren't 100% ready for Ascent either. The fact that they took a victory on map number 1, that's a very big deal for South Built. It really was, but we're seeing a lot more high IQ plays from नानी कह रहा है वो बंदा कह रहा है जो स्क्रीम खेलता है the side of ये उस बंदे का कहना है जिसने स्क्रीम्स खेले हैं जो इमॉर्टल है रैंक we saw debates happen कि भाई smoke plays बहरीन का प्लेट इज लाइक ओ माय गॉड खतरनाक smoke criminal as you would call it. But after this, अरे मुझे ये नहीं समझ आया कल कैसे हार गए 7-0 का लीड चल रहा था हर राउंड में घुस के मारा इन लोगों ने घुस के मारा मैंने देखा मैंने कहा ये हारे कैसे हैं ये लोग मतलब यार 13 राउंड जीतने अगली टीम को 13 राउंड फर्स्ट now after that as well we know that the defensive side is what South Built chose here because as we know I feel like for Haven attacking side is a little bit more skewed. सिंगापुर नहीं है खेलने लायक dude like and how the rotations can be. मेरा तो सिंगापुर में पिंग भी ज्यादा आता है मेरा तो बहरीन में पिंग कम आता है मेरा बहरीन में 70 पिंग आता है 70 सिंगा में 100 आता है अरब बंदे भाई honestly I think that this Haven is मैंने एक ही चीज सीखी है वैलोरेंट खेलते हुए It's a map where Poppy तुम्हें एक फर्स्ट 2 राउंड में पता लग जाएगा कौन कितना है उस सर्वर में तो अगर कोई है तो Micro will be stepping in instead of Pro if I'm not mistaken dude अरबियों से एम डुअल नहीं लेना कभी अरबी बंदों से कभी नहीं पाकिस्तानियों से लो सबसे लो अरबी बंदा होना कोई उससे एम डुअल नहीं लेना कभी I think if South Built because you cannot out aim him they have to take Haven you can outsmart them easily वो खेलते ही एम पे वो खेलते ही एम पे आरबी बंदे दिमाग में नहीं खेलते वो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तुम अगर हो जाएगा But if he's not very familiar, you are right. Rather just not take the risk. आरबी बंदों को नहीं कर सकते dude तुम like And when you think about all these rotating players for certain maps, अरबी बंदों को आउट एम करना मुश्किल है लाइक मैं क्या करता था लाइक अभी मैं सोवा चलाता था ना तो अगर मुझे पता होता कि अच्छा ये बंदा है तेज मैं कभी भी पीक नहीं करता स्विंग नहीं करता मैं हमेशा डार्ट का वेट कर लेता 10 सेकंड अपनी टीम क्रम्बल कर जाती है यार एंड में माँ कसम वो डेथ मेकर का वेव है पूरा वो डेथ मेकर से खुद पूछ लेना once I saw that 0 and 4 on South Built side I'm like okay they have to play for Haven and then they have to play for Blind सिनात्रा जैसा भाई मैं वैसा खेलने लग गया था छोड़ दिया मैंने सारे डार्ट याद करके रखे थे सिवाय मेरे को फ्रैक्चर के नहीं आते हैं डार्ट बस सारे डार्ट याद करके रखे थे मैंने 3-4 बंदों के हर एक डार्ट याद करके रखे थे just now we've seen that increase in their skill or improvement rather and I think that they'll be able to hold out on top especially with Deathmaker. I think Deathmaker will be their नहीं FPS गेम्स में नहीं वो चाइनीज मोबा खेल सकते हैं very very painful especially if they're on the but FPS गेम में ये आने होने वाले यूरोप वाले बेटर है He's gonna be giving South Built dude मैं यूरोप रीजन का मेरे पास वो था ना लाइक जो बहरीन है वो जो यूरोप है ना लाइक बहरीन यूरोप में ही आता है मैंने स्क्रीम जो है ना ओरिजिनल स्क्रीम उसका मैंने रिजल्ट खोला है डूड उसका उस बंदे ने जितना रिजल्ट था ना पूरा का पूरा डूड मैंने स्ट्रीम पे है वो कहाँ पे है स्ट्रीम पे ढूंढना पड़ेगा पूरा का पूरा जो उस बंदे का रिजल्ट था ना डूड हर एक मैच उसने जीता हर एक मैच में वो बंदा मैच MVP है टीम MVP है हर एक मैच में
उसके पूरे रिजल्ट में कोई ऐसा मैच था ही नहीं था जिसमें वो बंदा हारा था या MVP नहीं था। वो MVP और मैच MVP हर बार था स्क्रीन, और वो रेडियंट था उस टाइम पे नंबर 1 पे यूरोप में। मैं सोच रहा था वो क्या मतलब मार चलाई होगी, मतलब हर मैच MVP टीम MVP मैच MVP हर बार वो बंदा पूरा जितना रिजल्ट है उसका हारा ही नहीं कोई गेम वो। Will be making an appearance. Now this is something I'm a little KO. concerned about. I'm not too convinced of the KO on Haven. It's not something I see as it's a big सैन इस बार क्वालिफाई नहीं हो। गार्ड बहुत खतरनाक खेली भाई, गार्ड वालों ने तो वो पता नहीं कुछ अलग ही गेम खेल रहा था थोड़ा वो। एक तो साया प्लेयर ने बड़ा मारा मतलब, और एक ट्रेंट। If they could run with the knife, we've seen it happen before earlier as well. ना we ना have also seen earlier in the early यार एंड डेथ में करनी होता है भाई, उसका बहुत कुछ दांव पे लगा है भाई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट पैनिक नहीं करना ही स्पोर्ट्समैनशिप है। You take your time if you lose, okay। अब डेथ मेकर को ये रहेगा इतना टाइम तक यार मैं पैनिक कर गया, मैं पैनिक नहीं करता, मैं मार देता, वो चीज़ बुरी है। टाइम लेके मारो ठीक है, फिर तुम्हें ऐसा लगता है ठीक है अगला बेटर था मेरे को मार गया, वी नीड टू वर्क हार्ड। पर जब खुद गलती करी होती है ना या खुद पैनिक करा होता है, वो बहुत गुस्सा चढ़ता है खुद पे। सैन एपैक से बाहर नहीं है, एपैक तो एशिया पैसिफिक रीजन है, सैन VCT से बाहर हो गई है। Obviously want to be in the playoffs. Just even getting into the playoffs is a big deal for some teams who even haven't had the exposure of getting to a large playground like this. Don't panic, definitely don't panic. You learn so much. यार वो लीग खेल रहा When you है, play in just मुझे तो चलो पता है वो कर क्या रहा है, बट जो बंदे मोबा नहीं देखते उनको कैसे पता लगेगा क्या कर रहा है। Not a big fish anymore, and you have so many different strats to deal with, different play styles, as well as people so much better from you. CS में है ना मेजर है, experience you want, even if you यानी वैलोरेंट में वो सेंटिनल ही तो जीते थे मेजर टूर्नामेंट पहली वाली। And once you start playing against Valorant country aside way, I mean you've seen how PaperX from a very very small region, look how much better they are than the rest of the other teams here from Malaysia and Singapore. Yeah, that's true. I think PaperX are one of the most perfect examples that you could have brought out for this, because PaperX, they are a team that has been fairly global for a while now. They hardly ever scrim with local teams, right? No. सुट्टा पीने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली, उससे ट्रेमर आते हैं हाथ पे, जो ज़्यादा पीता हो बेचैनी टाइप होती है। तो from the rest of his team, they're going to try to take a double. Jat wins it, and now they're going to be going towards 8. They still have 3 more players to find. Advanced angle here for Vibhor. Easy. He has his paranoia out. Oh my god, he didn't know that he was there! Vibhor पीछे देख। 10! Are you serious? At least he got punished by a jaw out of that, and flipping from the side. Round 1. ये 3-4 राउंड में पता लग जाएगा क्या होगा। Oh my god, they only lost Papichulo. They only did. Well, only, but still. I do have to say that Southville, श्राउड ने छोड़ ही दिया, मेजर क्या लाना था एंड में। PUBG फोकस कर दिया, सिंपल ने नहीं छोड़ा, नहीं जीत पा रहा था वही बंदा, कितना तगड़ा था, बेस्ट प्लेयर है वो। मतलब किसी से भी पूछ लेगा सिंपल बोलेगा बेस्ट प्लेयर है, उसमें तो कोई शक नहीं है, पर वो भी नहीं जीत पा रहा, वो भी अभी जीता है भाई मेजर है अभी। उससे जब भी पूछते थे दूसरी गेम वो कहता मेजर जीतना है, उसके बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद सोचूंगा कुछ और खेलने का। वो बंदा इतना खतरनाक होने के बाद अभी जीता मेजर, रो पड़ा वो। अगर ये पड़ गया ना, impact out of the way, and immediately moves away. Fell from the side here. The spray is coming through from Ja. Doesn't manage to get him out of the way, but Flippy has his इसने back. दो बंदों को डैमेज दिया है अपने वो। Ja almost getting taken down by the right clicks of the classic, and it's Pro who does find, along with Ja. ये 3 साइडें नहीं होल्ड होंगी, देखना पड़ेगा। Aziz really can't get that shot off. He's ठीक है बाय नहीं करा अपनी टीम ने, अगले में फुल बाय करेंगे। ऐसे भी जो पिस्टल जीत जाए 90% तो वही जीतता है। ठीक है डबल पिक करी थी, अपने वाले ने बाय नहीं करा था। वैलोरेंट का कॉम्पी ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उसमें डेप्थ नहीं है इतनी सीरियस में। मैंने खेली है वो गेम,
I think now बट यहाँ पे मतलब abilities बहुत कुछ change कर देती हैं उसमें वही है एक ही जगह से आ रहे हैं मतलब जो मैंने मैच खेले उनमें तो वही था on this map it's so good for attack especially if you go to B because it's a very small area. However, I like the fact that they're able to play retakes when they go to A. They're not really too concerned too much. Deathmaker here, he wants the garage, but there's two people there wall banging it. There is the Astra Star there, has to be careful, but look at that, immediately covers the whole area out. Ja already ready to get up close and personal in your face. Deathmaker definitely knows यार that. KO split में चल सकता है यहाँ पे they want a piece of it because the likelihood of him getting shot up from the पर उनका टीम कॉम्प रहा होगा कुछ ऐसा ही towards that garage area is just too much of a big risk without the proper support. Instead they're going to be working their way towards A and it's all well and good because there should be a lot of information. मैं तो एक ही बात बोलता हूँ डूड utility पैनिक से बचो मतलब मर जाओ कोई बात नहीं एंगल के लिए मर जाओ पैनिक मत करो वो बहुत रिग्रेट बहुत गंदा रहता है विबोर उठा लेगा ना अगर के लिए मजा आ जाएगा ऐसे हो जाएगा come on So just now Nico उसको just पता gave है us यहाँ a से little आएगी bit of रोटेशन information. They said breach pick was actually specifically for KO. impatient हो that's जाता big and I love the breach pick because how many lockdowns can you actually destroy with that as well. Let's see if it comes into play here. Double swing out coming through. Retake now commencing. They do get a ping with that recon bolt. Ja has information on the lurk. Amaterasu open. नहीं यार गेम को समझने के लिए इतना वो नहीं लगता लाइक उसमें सिर्फ एक ही चीज है सिर्फ उसमें ओ खत्म गया मतलब वही है गन प्ले है मैं डूड वही है यहाँ से आ रहे हैं हर बार वही एक गन प्ले वो बोरिंग हो जाता है काफी ज्यादा लाइक एबिलिटीज एक डेप्थ ऐड करती हैं उसमें भी है फ्लैश बैंग है बट डूड अपने वाले बंदे अनलकी हैं बहुत ज्यादा आज और ये लकी हैं बात यही है आज तुम मानो ना मानो वो जो हेलफ के साथ हुआ वो अनलकी था और जो ये अभी हुआ उसने मतलब निकल रहा था उसने साइड में फ्लिक करके चेक कर लिया स्पेक्टर से उसको किल मिल गया Look at this aggressive angle here coming in from Pro, trying to get some information. Keo Knife does give them the information that they're here. But Azzy's like, it's okay, I have an off. Do I really need my abilities for this? It's only like, what, 3-5 seconds? अपनी टीम का बाय नहीं है 4 राउंड हो जाएंगे 4 राउंड हो गए उन्होंने टप देना इनको अगर ये वीएलटी निकाल देती है ना मतलब अगला मैच पक्का जीत जाएंगे अगर वीएलटी ये मैप निकाल दे Either way though, let's have a look at this. Deathmaker on the aggressive big does find Capichulo, which is definitely a very big pick. Deathmaker from side Ja from यार ये साले कितने तेज है भाई उसने डेथमेकर ने इतना खतरनाक एंगल चेक करा है जो मतलब सैक्स एंगल डेथमेकर ने सैक्स एंगल चेक करा है डूड इससे बेटर वो कुछ नहीं कर सकता डेथमेकर ही कैन डू नथिंग जैसे डेथमेकर ने एंगल चेक करा है डूड लाइक ही कैन डू नथिंग बेटर वो परफेक्ट एंगल चेक करा उसने फिर भी टैप मार गया वो रिप्ले करके देख लो डूड डेथमेकर ने परफेक्ट एंगल चेक करा है उससे परफेक्ट तुम एंगल चेक कर ही नहीं सकते वो वाला भाई क्या करेगा अब डेथमेकर भी उसने परफेक्ट एंगल चेक करा है मतलब बहुत अच्छा एंगल चेक करा था उसने The replay does come in. We take a look at how things went out. One of the cleaner rounds for South built here as we get. देख यार तुम्हारे पास एक ऑप्शन था वहां जाने का तुम गए नहीं but VLT's favorite map number 1. Yeah, that's right. पिंग यार हो जाता है यार आराम से हो जाता है Come around doesn't give them the information they need. Aziz very aggressive here, doing a jet. इतना ही था तो चले जाते भाई तुम्हारे पास चॉइस थी And towards that, अगर इनको पिंग मार रहा है फिर तो क्या ही करेंगे ये लोग
is what it is. Okay. Oh, beautiful catch there onto Flippy. That's from Hell FF. Immediately repositions themselves, and because of that pick, they think, okay, it's a little bit safer at least. Flash does come out. मैंने 8 पिंग देखा है, नहीं 6 भी देखा है, sorry मैंने. I've seen 6 ping. The problem is, he does get detected. He can't do anything right now. His bots are offline. Yeah, it's absolutely shut down there, and LFF will be working towards garage. इनका ना दिमाग खराब हो गया VLT वालों का. I think उन्होंने टीम कॉम दिया है, जो मारो उसके, देखा जाएगा जो होगा. Surprisingly, South Build doesn't I actually think have the best of economy, so. ये गंदा एंगल ले कर रहा था, वही एंगल होल्ड करना था उसको बस. At least he has one out of that. Just to make sure. नहीं, ये तो VLT जीत गई है राउंड. यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता. Yeah, if they can find maybe 2 more kills on the exits, that would be a great help. VLT का राउंड है, तुम कुछ नहीं कर सकते इधर. Their first round in the game, and it's. अरे आप सेव करने पड़ेगी इनको. It is an area that they have found success in, and if game 1 was any indicator of how the rest of this would कल सही है यार. VLT will be trying time and time. अच्छा खेलता है बस थोड़ा वो कर देता है. मतलब. That's right. First map taken. It looks very convincing this time कल around. थोड़ा टाइम डाल देना, मेरे से बहुत बेटर हो जाना उसने, मेरे से कम टाइम पे. Coming up, we gotta say, Hell FF's picks were the ones that really gave them the momentum at least. Either way, though, South Build needs to do something to stop this momentum because VLT is a team that runs on that. They do. And VLT with the momentum, they are a very dangerous team. But South Build, they're known to be one of those teams that are just the immovable objects. So hard to break through them. तो एक बात डेथ मेकर को भाई उसको अंदर घुस के चेक करना है. It feels like the tree area here, but Ja, this time on the aggressive, he will be playing the smokes. There's a gravity well right now. Death maker from the side here, just a little bit faster. I don't have the permission from Yeah, that's a big kill on Nordwin Gaming. और साथ में मुझे हिंदी में मजा नहीं आता. मैं पसंद नहीं करता हिंदी में कास्टिंग. ओह नाइस. We'll be happy with that, but Oh, in turn, Hell FF finds Flippy, but the revive will be happening. The only moment where the revives will be happening from Jet, they will actually no, Jet won't be doing that. Actually, and they keep every. Okay. इन्होंने I think क्या हुआ है जो मेरे को लग रहा है. You can do without one. I don't think he can even find the operator. So. कल कहाँ ऑस्टिन ट्राई कर रहा है. South side coming up after this one. South. He wants to find someone, finds Vibor, that's huge. Makes it expensive, at least finds a pick. मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल आई है, इन लोगों को कॉल आई है भाई, जो होगा देखा जाएगा. घुसो. That's right. They have broke or found at least the code that is the Rubik's Cube called South Build Esports. Oh, they have money. मुझे लगता है VLT वाले बोला घुसो भाई, घुसो देखा जाएगा. ऐसे ठोको इनको. Coming in here finds Ja. This is exactly what we talked about in terms of Deathmaker on tree from the previous map as well. And suddenly, right to Ace when नहीं आज का नहीं देखा यार मैंने. देखना था बट थोड़ा स्लीप शेड्यूल का सीन है. आज मैं सोया नहीं हूँ, पूरे 24 घंटे हो गए मेरे को ना सोए हुए. रात को ही सोऊंगा, आज स्ट्रीम ना करूँगा. As is missing that shot there towards mid gets very कल का यार उसके साइड में ना एज है उसकी. मैंने देखा है उसके, एक तो उसकी एज मेरे से कम है. एज मेरे से क्या कम है, मेरे से 5-6 साल छोटा है वो. अगर मतलब कंटिन्यूटी से खेल लेना उसका लगा, मतलब 1 साल और कंटिन्यूटी से अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं कौन सकता टॉप पे. From the side here, we haven't really seen those impacts for concussors at least. एज भाई बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है. Rather, right to Ace does get that information he needs from the side of the window. Right to Ace will be getting that thing out of the way. Either Sentinel बेकार नहीं हुए यार, 100 रीजंस होते हैं. हो सकता है मैच जो गार्ड कितना तगड़ा खेल रहे थे वो साया प्लेयर और वो ट्रेंड. Paranoia as well. Here's Pro playing the corner here, spots one out. Deathmaker a little bit faster on first initial contact. Right to Ace will be just be spraying, and they have wasted enough time that the pop does happen, but they can't actually force that. He gets 1, gets 2, 3. Why? Won't be able to at least seal it.
Yeah, he's gonna save this क्यों? gun as well. He should be able to टाइम नहीं है, तुम्हारी गन चली गई यार. But it makes it so expensive for the VLT. So I'm a little bit. They can still probably buy it on top of this. Yeah, look at, oh my god, VLT's rich. They have like 9k on 3 players. Yep, that's right. But that's अच्छा, what I पैसे हैं talked about उनके. just now. We Credit did है. hear the aggressive. I think it was a roll हाँ, defender 18 from ही the है. side of Flippy. But यार, as I said before, I mean, when you play Arvind really want Kejriwal sir, I am good sir. How are we you? haven't seen that moment where Flippy moves in with the concuss for those really यार big एज hits, बहुत मैटर rather. करती है. लाइक मेरी एज में आते आते ना न्यूरोप्लास्टिसिटी यहीं पे जाती है बंदे की. मतलब बहुत कम हो जाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी. बच्चों की न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है. मतलब 22-23 तक आते ही कम होती है वो. तभी सीखने का टाइम. मैं सीख तो बाद में भी सकता है बंदा, बट जो पहले शुरू कर रहा है ही हैज़ अ बिग एडवांटेज. उसका टाइम की एडवांटेज है. So in towards C, he was just flushed out with utility. So 18. At this point, Aziz might start considering dropping the operator for now because it hasn't been working out. Maybe picking up something else. This feels like a Red Neville this morning, honestly. Same thing as well. Sometimes 3 राउंड जीत लिए just भी change of pace. लेट्स गो. There is BLT, लेट्स the गो. timeout just now was might अगर डेथ switch. मेकर ने एस नहीं मारा ना, This is सीधा a change of मैं pace डेथ now मेकर को from पकड़ them. रहा हूँ भाई. And I'm really interested to see how they'll मैं do बता this. रहा हूँ. Because right now they're ahead, rather in terms of economy at least, and they're just like, okay, how can we make sure that this keeps on going in our favor? For now, Papi Chulo not really popping off just yet, but we do know that for KJ, you really need Sentinel that for them to really होता है यार. I mean, the judge play did work देखो out in his कोवैक favor, करके but ना मेरे को not एक that चीज पता big चली है. मैं impact सबको we बता want रहा to see हूँ. for Papi Chulo. एक दिन But as तुम्हारे you स्कोर्स did नहीं say, आएंगे. it takes a while for them to warm तुम up. कुछ भी कर लो, This is नहीं what आएगा it is. तुम्हारा This is स्कोर. a pressure जितना मर्जी point. कोवैक He कर can't लो, use any of उस his दिन गेम में भी किल He's नहीं the होंगे. back of sight right now. He has to be careful. और जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है, तुम सुबह जैसे उठते हो, कोवैक खोलते हो, हाई स्कोर जाता है. उस दिन तुम्हारी गेम इतनी अच्छी जाती है ना, मुझे नहीं पता कोई खाने का सीन है, स्लीप का सीन है, क्या सीन है, बट ऑफ डे होता है. ऑफ डे इज द ट्रुथ. ऑफ डे होता ही है. और ऑफ डे से निपटने का एक ही तरीका है जो इंडियन प्लेयर्स कभी नहीं करेंगे, तो वो तो खत्म हो गया. ऑफ डे होता है, ऑफ डे वाले दिन किसी का मैच होगा तो खत्म बात. साला इन बंदों को पीक करते हुए भी डर लगती है. जैसे राइट टू एज जैसे बंदे को पीक करना हो, डेथ मेकर जैसे बंदे को पीक करना हो. ओह, राइट टू एज ने उठा लिया उसको. They do have now a little bit more of an opportunity. Crispy looking for another one. Can he double dip? बहुत क्रिस्प मार रहे हैं ये लोग. लो संचेन exchanging the attention, drawing aggro. होता है यार, ऑफ डे होता है. उनकी एक्चुअली सेंटिनल्स का चक्कर है, पता है क्या, ये ग्रीडी बहुत है फुटेज के. साथ में नहीं खेलते, इंडिविजुअल प्ले से नहीं पहुंचता बंदा ऊपर. वो जो गार्ड वाले थे वो साथ में खेले हैं. मतलब जो शज़ैम बी पे वो कर रहा था, ऑप कर रहा था, जो मिड से आके उन्होंने पैरानोया मार के, मतलब इतना खतरनाक प्ले बनाया उन बंदों ने. 3 बंदे आए थे मिड से. सेंटिनल्स में क्या, ये फुटेज खाने के चक्कर में रहते हैं. उससे नहीं भाई. तुम्हें पता है इंडिया में कामयाब पता है क्यों नहीं होते लोग मोबा शोबा में? हर बंदा चमकना चाहता है. कोई बंदा सपोर्ट नहीं खेलना चाहता, कोई बंदा सेटअप नहीं करना चाहता गेम को कि उसका टीममेट को फायदा हो. यहाँ पे बंदे हैं ग्रीडी. सेंटिनल्स आर प्लेइंग लाइक ग्रीडी बिचेस कि सारी फुटेज मैं ही खाऊं. वो चीज़ गलत होती है. वो जब वो आ जाएगा जब तो काम है भाई. ये टीम गेम है. दिस इज अ टीम गेम. यू कैन नॉट प्ले दिस गेम सोलो. If Papi Chulo goes down here, that could very well be the round already. He has to play this smart. Timing. When are they going to start the play? They're waiting for the flash to begin it. The recon should start the retake. Come on, Deathmaker. Just taking his time with this, but the thing is they are running out of time. Recon is out, doesn't spot anyone. Amatras from the back. Papi Chulo will be the one catching out in turn. And suddenly the concuss is out, but they're running out of time. How are they going to play this? Flippy gets one out of it, and that's Deathmaker. Vibor gets one in return. And then suddenly it's going to be so good for them. They are going to be waiting in the back here. They will be blown up to smithereens. Papi Chulo मैकेनिकली बहुत सुपीरियर है सिंगा वाले. ये जो भी फिलिपिनो वाले प्लेयर्स है ना, मैकेनिकली बहुत सुपीरियर है बीएलटी वालों से. सामने दिख रहा हम गेम में भाई. जो
मतलब पीक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अपने वाले थोड़े ज़्यादा ओवर पीक कर रहे हैं, वो पिद्दी सी पीक करके किल निकाल ले रहे हैं, पिद्दी सी पीक करके। यही चाहिए वैलोरेंट में, लाइक आप एम नहीं कर सकते इस गेम में, टाइम ही नहीं है आपके पास। That's right. Crow trying to get some information here. VLT still on the attack. But what is he? He doesn't actually spot anyone out. They all are very, very aware. Aziz trying to wait here in case someone wants to play inside the smoke. But hell FF. He wants to go through mid. Right now, Aziz waiting up on side. Oh! Timing, he does not know that Deathmaker was there. And now free up adjustment. Oh my god, dude. Yeah, dude, Kashmir files was good. Like, fabulous. Still in the picture, and Deathmaker has been the key a lot of these rounds to get in onto those sites along with Vibor. That duel has just been so fearsome. Oh, मित्रा उसको मेरे प्ले वो निकल गया। Trying to bury themselves in it as Flippy looks to hold the line, gets attacked. Oh, nice adjustment towards the right flip and flicks. Here comes the rolling thunder, staves them off a little bit longer. The spike is dropped into no man's land, and यहाँ पे पीक करना बेवकूफी होगी। Here, Flippy on low HP, so he will have you cannot peek here. Carefully, we'll have backup in the form of Ja, however, but the moment like you have to go back. The time first VLT to enter onto the site, but this crossfire is so difficult to deal with. There's 4 players working it. The lockdown has already been deployed, but Ja comes up with 1. Flippy looks to go from the flank. Pro moves 2 down. कोई बात नहीं। 8-4 का भी स्वैप हो तो आराम से हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ 9-3 तो हो ही नहीं सकता। या अनसेंसर्ड डूड receive the money you sent. Thank you for the support. भाई AOT मैं अभी नहीं देख रहा, लाइक पूरा आ गया है क्या? मेरे को पसंद नहीं है यार वेट करना, वन पीस का वेट कर करके बुढ़ा हो गया हूँ मैं। लाइक साला ऐसे हो गया था कि एक हफ्ता पागलों की तरह वेट करता था अगले एपिसोड का, अभी मैं नहीं देख रहा। नो रिस्पेक्ट। 8 का भी 100 तो आ सकते हैं वापस, लाइक बड़ी बात नहीं है। ये भी तो 8 से आए थे वापस पिछला गेम। अब ये इसका तुक्का ना लग जाए। ओह डूड नो, हेड दे के ही मर गया डेथमेकर। किस्मत तुम्हें पता है, मैंने एक बार एक मैच खेला था, ठीक है, फ्लैट लेवल पे सोवा था उस दिन। लाइक मैं पहले कोवैक में गया, आई ब्रोक लाइक 3 to 4 हाई स्कोर्स, उठते ही 3 to 4 हाई स्कोर्स। उसके बाद मैच खेला मैंने स्मोक में 4-5 बार, आई थिंक 3-4 राउंडों में स्मोक में मैंने शरीफ का एक टैप मारा, हेडशॉट पड़ रहा है हर जगह। जहां गोली मार रहा हूँ, जहां वॉल बैंग मार रहा हूँ, हेड पड़ रहा है बंदे को। मतलब वो किस्मत थी भाई। मेरी बिल्ली भी है बट बड़ी मतलब भी है वो। मेरी तो 4थी जनरेशन है भाई। यार ये साला एसके रॉसी का भाई है। देखो ऑफ डे का सोल्यूशन जो है वो करने का दम बहुत कम बंदों में एक्चुअली। वही कर सकते हो तुम ऑफ डे वाले दिन, थोड़ा संभल जाएगा। सोलो खेलने का चक्कर ये रहता है कि ऑफ डे रहता है। लाइक मैं और स्कल खेलने का हमारा फायदा ये था, लाइक जिस दिन मैं और स्कल अगर टॉप 2 में नहीं है या मैं टॉप फ्रैग नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो मैच हम हार चुके हैं। ये हमारी सिचुएशन है हर मैच में। If me and Skull are not top fragging, we lose every time. We never win. We never get carried. अब स्कल के साथ खेलने का फायदा ये है, या तो मैं टॉप फ्रैग कर रहा होता हूँ, कभी कभी उसका बैड डे जाता है तो निकल जाता है मैच। कभी कभी वो टॉप फ्रैग कर रहा होता हूँ, मेरा बैड डे जाता है तो भी मैच निकल जाता है। कभी कभी दोनों का टॉप पे निकलता है और कभी कभी दोनों का ऑफ डे इकट्ठे आ जाता है मेरा और उसका। और ऑफ डे का ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन आएगा, ऐसे हर हफ्ते में वेडनेसडे ऑफ डे कभी भी आ सकता है। ऑफ डे मतलब
तुम्हारा जो वर्स्ट है ना वो दूसरे के एवरेज जितना अगर हो जाए प्रैक्टिस से, जैसे कोवैक कर करके तुम्हारी जो एमिंग एबिलिटी है, रॉ एमिंग एबिलिटी, दूसरे का जो तुम्हारा वर्स्ट है ना वो दूसरे का अगर एवरेज हो जाए, समझ रहे हो, जो तुम्हारा वर्स्ट है, जिस दिन तुम वर्स्ट खेल रहे हो तुम दूसरे के एवरेज के बराबर खेल रहे हो, तुमने इतना उसको अपलिफ्ट कर लिया अपनी एबिलिटी को, तो निकल जाएगा। और आधे बंदे तो ऐसे होते हैं उनका जो वर्स होता है वो दूसरों का बेस्ट होता है, तो वो बहुत मारते हैं, हारते वो भी हैं बट भाई वही है जो घूमती है बाहर। दूध भी गोस्टी एपेक्स खेलता हूँ यार मैं, सोया नहीं नहीं ऑफ डे एक दिन होता है, जिस दिन तुम्हारे शॉट्स नहीं पड़ रहे ना, मतलब 3-4 मैचेस में समझो ऑफ डे चल रहा है। ऑफ डे वाले दिन मैं तो एक ही बोलूंगा, ऑफ डे वाले दिन छुट्टी लो, गेम मत खेलो। ऑफ डे जिस दिन हो उस दिन मैं गेम नहीं खेलता, मतलब मन नहीं करता मेरा खेलने का। ये साले बड़े मैकेनिकली सुपीरियर्स हैं फिलीपींस वाले, मतलब उनका दिख रहा है ऐसे क्रिस्प क्रिस्प चल रहा है भाई काम। साइड खाली, साइड खाली, पहुंच गए वो लोग। ऑफ डे जिस दिन है या तो मैंने जो बताया वो करो, और या वो नहीं करना तो फिर छुट्टी बनाओ उस दिन चिल करो, मूवी वगैरह देखो कोई, क्योंकि दिमाग खराब नहीं होगा तुम्हारा, दिमाग खराब नहीं होगा तो अगले दिन चिल से खेलोगे, नहीं तो वो खुन्नस रहती है वही। बस मेरे शेरों और मारो। Really, they lose only one out of that. Actually, no, they didn't lose anyone. Right to Ace survived barely, actually. That's a great start for VLT to come back into this game. It has like what, 3 rounds between them now. And it's fantastic chance for VLT to get back into this. Should be seeing 8-6 after this. And yeah, that's right. I really like the setups you're coming from. तुम्हें पता है जो VLT का ओनर है ना, अन्ना, लिटरली कह रहा हूँ, उस बंदे को पता है प्रॉफिट नहीं होगा, उस बंदे को ये बात पता है, और वो बंदा बिजनेसमैन है, और बिजनेस करता ही बंदा ROI पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरे को कुछ आएगा। उस बंदे को पहले ही पता है अन्ना को कि नेट लॉस है, बट फिर भी वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि स्पोर्ट्स का सीन आगे बढ़े। ऐसी टीम को, मतलब जो उसने जो उस बंदे ने जो गियर प्रोवाइड करे हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलता, लाइक अन्ना ने जितना एफर्ट डाला है कि उस एक बंदे को देख के वैलोरेंट में दूसरी टीम्स ने जंप करा है। उस एक आदमी को देख के दूसरे बंदों ने भी जंप करा है, मतलब जो चांस लोगों को मिल रहा है ना वैलोरेंट पे इंडिया में, वो सिर्फ उस एक बंदे से शुरू हुआ है, उसके एफर्ट की वजह से। सिर्फ सीन को बढ़ाने के लिए, मतलब सोचो अन्ना की स्ट्रीम पे भाई, हाँ पैसा लगता है यार, इट्स नॉट इजी डूड, लाइक 3 टाइम खाना, तो पता रेंट कितना होता है मकान का डूड। बैंगलोर जैसी जगह में ना 1 बेडरूम लेना हो, एक, उसने तो घर लिया है भाई बंदे ने पूरा, आई डोंट नो कि उनका अपना है या रेंट पे लिया है, बट भाई गुदा चाहिए, लाइक तुम्हारे मेरे 10 रुपए गुम हो जाए ना, मैं जो शाम तक बुरा लगता है यार, 10 रुपए थे गिर गए, वो बंदा लॉस में चल रहा है और उसको पता है लॉस होएगा, सैलरी देनी है, प्लेयर्स को रखना है, मतलब अपनी जिम्मेदारी होती है भाई, प्लेयर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास तो दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। इसीलिए आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। B site is just not the place to be for the side of South Build here.
stalled out in the middle of the highway. Can anybody हार जीत होते रहती है यार. Doesn't look like it's going to be the case though. They do have But a little bit of weaponry. VLT जीत जाए ना dude. I just want these guys to win. It's going to be so hard. This crossfire, look where the spike is. साला क्या मार के गया भाई ये. And they brought it down to a 2v3. Smoke will come in. They want to get ahead of it. And so इनके मैकेनिक्स बहुत तगड़े हैं. Well, he's managed to find yet again another one. 2v2 out of nowhere. Ja finds a third for a 4 kill. He's gonna be Oh. Ja gets the 4K clutch. That certainly is the round that they were looking for. That is South Build fighting back into the game, recovering a situation that they had no business winning, but still it was scrappy to say the least. They lost way too many players on that. 50 के मंथली सोचो I'm dude. just so surprised at VLT. How can they allow मेरे पापा की आई थिंक सैलरी 45,000 थी शायद लास्ट This is definitely जब not the play. सर्विस Usually करते you थे. see them swinging मेरे together. पापा की What सैलरी happened? से ज़्यादा रेंट है I do also और think 50 के रेंट है तो प्लेयर्स की सैलरी कितनी होगी. VLT 3 टाइम का खाना कितने का sorry, होगा. South Build picking the wrong site. If I'm being honest, we look at जो हार्डवेयर पेरिफेरल्स होते हैं 3090 ये जो लगे हैं वो कितने के होंगे. South Build will call a timeout because they have to figure out what the hell just went wrong. And if you ask me, it's Dude, because they rushed like- B without a lot of information and Yeah. against forced buys, against the bonus round. Not exactly the best of decision making in that one. थ्रो नहीं करा उन्होंने यार. वो अच्छा खेल रहे हैं यार. We're ready for it. और एक और बात गेम में याद रखनी है, ये नहीं होता कि यू आर प्लेइंग बैड, अदर्स कैन बी गुड टू. I personally think they would तो do so उसको जब much तुम better एक्सेप्ट A, करोगे तो especially get the entry onto बहुत that इजी हो with, जाता है. with, लाइक मेरे को कभी कभी कोई अगर मारता है तो मैं ये बोलता हूँ नहीं इज बेटर. ये नहीं बोलता कि मैं थ्रो कर रहा हूँ, वो खुद पे गुस्सा निकलता है. तो दे आर प्लेइंग गुड. क्या कर सकते हैं वो भाई, उसने इतना परफेक्ट एंगल क्लियर करके पिक निकाल लिए. Kind of wondering, it's good fortune for them that they did win that round, but as a result, look at what's happened. पाथफाइंडर का पैसिव नहीं है ना वहाँ पे भाई. पैसिव चाहिए. ऐश लोगे तो पता लग जाता है फाइट कहाँ पे हुई है. Yeah, exactly. They won't have any money, but they're still a very capable team of winning. रेड से तुम पोर्टल कर सकते हो या डिसमिस मार सकते हो जब तुम पे मतलब That's right. कोई तुम्हें आर्क स्टिक कर दे रेत का, वो मार लो. एबिलिटी मार लो, क्यू ये भी अल्टा क्यू मार लो, फंस गए क्यू मार लो. पाथफाइंडर जाएगा कहाँ. रैंक में तुमने एक हुक मार के आगे टीम बैठी होगी, खत्म, इंस्टेंटली खत्म. Those guys they don't miss dude. Like in ALGS you are instantly finished. You need a Gibby bubble to fight. Still possible for both teams as this does get recon box 26 HP hell effect from the side here, but Aziz a little बहुत bit मतलब faster. But for now, they are just gonna make sure that they have all their angles covered, right? To Ace from the side here, does he know? For now, they do know now. And now suddenly राइट टू their एस वहाँ से बहुत attention अच्छे आ रहा था पर वो is पीछे से all भी देख on रहा है. राइट टू एस को, राइट टू एस alone. बाहर से जा ही नहीं सकता. Right to Ace, he might have to go for a save here, and I think he will. Oh यार. Steps, lot of footsteps for Aziz to pick up on, and South Build will be able to take this round. They get double digits velocity. They're यार those guys are running too. पता तुम्हें मोबाइल के कितने व्यूअर्स हैं? तुम्हें पता है मोबाइल्स के कितने व्यूअर्स हैं? And velocity, they can have to come up with something a little bit more creative. Those guys are earning that amount of ridiculous Every money single too. time, South Build, they're doing it just that much better on these. I wouldn't even say inspired takes. They're just going to be and winning. They should be punished for that, like they did the last 2 rounds. But I'm not too sure what happened there from the side of Velocity, because they won it. However, C will be their site of choice this time round. And look at that, Vibor already tagged as well. But nope, they're gonna just be changing their minds again because of these smokes. GG well play नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है भाई. Valorant है. I don't think that C is the right call for. ये 3 साइड वाला नहीं अपने बंदे वो कर सकते हैं फिलहाल. C is hardest to get onto. Let's be real here. Vibor can be the bane in their side if he wants to be, and against smokes. You have seen the sprays that come from him. Either way, he does have his ultimate. There comes the fragment, gonna buy some more time for them. They do still have. हाँ तभी मेरे को बंदा बोल रहा था स्लाइड मार दो, हील किया करो. खेलो यार. Begin that rotation elsewhere. But it's actually going to be double back. They fake it out. They're going to go back towards it and might have been. वलकरी से आपको फिर टीम से गुजरना नहीं पड़ता ना, वो नहीं तो वो गुजरने वाला काम बुरा है. टाइम टू किल बहुत ज्यादा है. फाइट करी थर्ड पार्टी हो जाएगा. वलकरी चाहिए वहाँ पे. He gets a double kill. Great entry for him. Great recon as well to give information. And the rest of the back line for VLT just खत्म है मैच. लाइक नहीं कर सकते आप.
That recon was huge on Papichulo. All he had to do was make sure no one was coming in from CT. Oh my god, and that's exactly how it looks like when you give your team enough information. They did that earlier in the last match, and once again he did it again. Aziz was just so fast to react to all that information. That's all he needed, let's be real here. It is a great round for Southville to have taken with the cleanliness. भाई BGMI कंटेंट यार मैं किस पे खेलूं बताओ? Time out now for VLT because they are. I don't have an iPhone. मेरे पास जो फोन है उस पे नहीं चलती है BGMI, बहुत टटी चलती है. Take a few more rounds than this. I think they need to be a little bit more creative. Like I said, do that. Once you lose your mentality, dude, like work towards mid control. Do something. Get someone nothing tucked you away can towards. do. Once someone gets into your head, literally कुछ नहीं हो anything सकता, for dude. Like Southville to change their game plan because Southville at the जब moment are leading the way. शेशाकी को जीरो every शिनमेन single टेकिजो की round. लड़ाई हुई थी, like for real. VLT शेशाकी को जीरो was the best swordsman in the whole world. That's right, and on top मतलब of पूरी that, दुनिया में वो सबसे खतरनाक तलवार चलाने वाला था. Flanks, he does और have उसका चैलेंज हुआ था We've seen him do शिनमेन it टेकिजो से फाइट हुई but थी. he'd rather anchor than that. I saw Hell शिनमेन टेकिजो ने क्या करा? साइकोलॉजिकल गेम खेली बस उस बंदे पे जो कि इतना बेस्ट था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, और शिनमेन टेकिजो ने साइकोलॉजिकल गेम खेली उस पे. But right now we are going to be seeing them play a different sort of बहुत lineup स्मार्ट here. I मूव think था everyone शिनमेन will टेकिजो anchor का. to see if this safe शाकी को जीरो पे. Seeing them do it at सेम least 2-3 स्पोर्ट्स में देखा times. मैंने. And where oh, that was so cheeky. We saw right now, just now, where they put their nanoswarm is exactly where Aziz likes to come in to dash into, at least when he goes on the aggressive. Suppression is out right now. They will just kind of take their time with it. Yeah, and fine. Take all the time you need, Southville. Something where that should have been a kill for Deathmaker any day. Frustration might be starting to set in here. ग्लोबल ने गेम आई थिंक 11 से निकाली थी, वो भी बहुत नीचे थे, हर एक राउंड जीते थे उसके बाद. As the rolling thunder does come in, they now build the pressure towards the site. They get on Aziz entries. Yet again, there's a hole that has been found, and they're going to widen that gap and that hole to get closer and closer to match point. The spike will be now planted, and it's completely up to VLT to change the pace of this game. भाई या मुझे नहीं पता पिंग डिफ है, वो अच्छा खेल रहे हैं. आई डोंट नो इनका पिंग डिफरेंस कितना ज़्यादा, बट दोज गाइज आर क्लियरली सुपीरियर. लाइक वो देखते उड़ा दे रहे हैं, अपनी टीम देखते नहीं उड़ा पा रही, वो देखते उड़ा दे रहे हैं. Those entry frags if he can, but I think what's gonna be happening here is that they don't want to risk that. वही है ना, he's hiding away from the recon. कल भी सही कह रहा है dude, like doesn't want to be picked off at least on that side, but for now कुछ चीजें करने के लिए ना आप में दम भी होना चाहिए. वो मतलब आप बोलते हो मैं इस बंदे को मारूंगा, मैं इसको पीटूंगा, बट अगर अगला वाला 100 किलो का और तुम 40 किलो के तो तुम नहीं पीट सकते उसको. Anything that they can do to sort of challenge the economy of Southville at this point will be. They are clearly better. Like वो मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा. No, throw in shot. No, suddenly the save is just not worth it. And VLT only survived with one rifle. This is one of the worst things that could have happened to the VLT side. Yes, that op, they wanted to save that op, but unfortunately that spray was just too good. It catches him. खत्म है गेम dude. Like यहाँ से next to impossible ऐसी टीम के आगे अगर अपने वाले बंदे नहीं. Honestly, that should have been a hit. For him, yeah. यार e-sports नहीं है इंडियंस के लिए. क्रिकेट खेलो ना यार. Into the playoffs, can VLT hold on? Answering those questions here right outside B. e-sports नहीं है अपने लोगों के लिए. अपने वाले क्रिकेट खेल सकते हैं और बाकी नहीं होता कुछ. And that's where they go. Here's the commit. Aziz looking to get in, blinded by the paranoia. It will not dissuade. They still have to deal with 3. As Aziz on the blade storm has to find at least 1. Spots the tip of the head, but he's well dealt with. LFF holds firmly with 2 big defensive kills. Flippy and Papichulo respond 3v3. Deathmaker with the blade storm. Now they get back into it. As bro. नेटवर्क स्पीड से फर्क नहीं पड़ता रूड. नेटवर्क स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टेबिलिटी कैसी है नेटवर्क की उस पर डिपेंड करता है. नहीं है e-sports नहीं है यहाँ के लिए. वो रीजनल e-sports है, ग्लोबल लेवल पे नहीं होता कम्पीट डूड. मतलब रीजनल खेल सकते हैं अपने बंदे, बट बाहर वाला नहीं खेल सकते हैं.
Oh my god, they were just saving everything from this last round. Papi Chulo wants no stone unturned. He wants to make sure that it is a clean round for him. This bot does spot him out immediately. Everyone knows. दो गोलियां हैं. 2 bullets can't even something happen. He gets 1, has to reload, but from his back is where it goes, and Papi Chulo seals the deal. Round 19 will be taken by Southfield Esports. 2-13. No overtime at all from any of them. And that's the Philippines going ahead. They qualify for the playoffs here on the APAC Challengers. A big congratulations to Southfield Esports. They knocked out the lone South Asian representative, the lone Indian team here. But I do have to say, Velocity Gaming have a lot to be proud of. An amazing run from them. See the discovery of a lot of new superstars here. Vibhor was an absolute amazing player. Should be proud of himself at the very end of the day. But the victory and the pride of qualifying goes to the Philippines, as they will take down their South Asian counterparts and be the ones to qualify for the playoffs. Yep, that's right. Really, I gotta say. Dude, cringe attack that guy single-handedly. मतलब उसने CS खत्म कर दी. सारे मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन इधर आने को तैयार थे, like फनेटिक फेस सारे आने को तैयार थे इंडियन रीजन में. CS के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलनी थी, और जैसे ऑप्टिक यहाँ से गया उनकी नाक लग के वो भाग गए. नाइस, बट 3.1 KDA. नहीं यार, You know, Tash, जेट अपनी just when I was about to dunk on his लाइक Astra, he's like, DM का तो कुछ प्रेजेंस दिखा ही नहीं, मतलब जीरो प्रेजेंस. और ऊपर से केओ का कोई फायदा हुआ ही नहीं, मतलब That's the thing. I was just केओ लिया criticizing क्यों, him आई and डोंट on नो. that round, he was just like, nah, I'm Fla- not taking क्योंकि केओ के देखो, केओ के फ्लैश से नहीं होता फ्लैश. योरू का फ्लैश बेस्ट फ्लैश है, उससे तुम कर सकते हो. या लोग तो ब्रीच का भी डॉज कर लेते हैं यार. मैं तो चलो नूब हूँ, मैं हर बार नहीं कर पाता, ऐसे 10 में से एक बार कर लूँगा डॉज. बट मैंने भाई मैं जो ट्विच पे देखता हूँ, वो उनको 10 फ्लैश मार दो ब्रीच के, वो नहीं होते फ्लैश. And then suddenly it just goes straight home, all the way to the side of SBE. great game right there for Southfield. Is now the lone standing survivor, the last team to qualify here, and the last Filipino representative in wake of the downfall of Team Secrets. And they're not being able to qualify. 4 सेकंड की वजह से कुछ नहीं हुआ यार. करना होता तो बहुत टाइम था डूड. Further across the line. मेरे को एक बंदा कहता कि वैलोरेंट अभी इतना रीजन में वो नहीं है, तो मैंने बोला फिर वो असेंड कैसे जीत गए. लाइक सी नाइट वगैरह वो तो छोटा रीजन है. All across the nation, the Filipino fans are wondering how far can they really go, and taking down South Asia, it's a good step. नहीं, नेक्स्ट टाइम भी कुछ नहीं सीखने को मिला डूड. लाइक बात ये है, तुम्हारे पास सीजनड प्लेयर है, यू हैव सीजनड प्लेयर, यू हैव वेटरन्स जिन्होंने CS को तगड़ा खेला है, जिन्होंने टूर्नीज खेली हैं. लाइक राइट टू एस ने तो NIP के सामने भी खेला हुआ है, फॉरेस्ट एंड गेट राइट वाली टीम के सामने. क्यों नहीं कर पा रहे? भाई इंडिया में क्रिकेट चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिलती है डूड. सीधी बात है, वहाँ पे लोग जान लगा देते हैं. इंडिया में नहीं, मतलब बहुत चूतिया लोग हैं, नहीं करते हैं मतलब मेहनत डूड. Yeah, I think you hit that nail right on the head there. Once इंडिया में लोग वहाँ नहीं मेहनत कर सकते जहाँ पे मतलब गारंटी नहीं है. a little bit of a breath of relief for the Southfield side. वहाँ पे They शेक कर know, जाते हैं लोग, sort of how to deal with him. उसका फायदा नहीं है. It was a really great game. इंडिया में बोल दो कि कल रूल निकाल दो कि माउंट एवरेस्ट जो चढ़ेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, PN की जॉब मिलेगी उसको. माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, कल रूल निकाल दो. माउंट एवरेस्ट चढ़ो तो PN की परमानेंट जॉब मिल जाएगी. लोग चढ़ने जाएंगे माउंट एवरेस्ट. यार बूमर्स लैक क्रिएटिविटी, ठीक है लक्ष्य, एंड दिस गेम इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. जो एबिलिटीज़ आप बड़े क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हो. बूमर्स क्रिएटिव नहीं रहते, क्योंकि बूमर्स का न्यूरोप्लास्टिसिटी ख़त्म होती है, एक सेट पैटर्न बना होता है दिमाग में, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. यहाँ डूड इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि बंदे नहीं है, मतलब यहाँ पे ये सीन है कि बंदे मेहनत नहीं करते, कि इनको जहाँ पे इंडिया में वो नहीं ना होता, लाइक
श्योरिटी, लोग वहाँ पे मेहनत करते ही नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा कम, तो फिर वो गेम में ही बहुत ज़्यादा कम आते हैं ऐसे बंदे। जहाँ श्योरिटी है इंडिया में, वहाँ यूपी, मतलब लोग कहते हैं इंडियंस कुछ नहीं कर सकते, यूपीएससी इज़ द हार्डेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, हार्डेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड है यूपीएससी, समझ रहे हो, हार्डेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, इंडियंस वो निकालते हैं, क्यों? और वो इतना मुश्किल है पर फिर भी उसके लिए 4-4 साल लगा देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें गारंटी है, मतलब पढ़ाई के मामले में यूपीएससी से हार्ड कुछ नहीं है, एग्ज़ाम के मामले में वो निकाल देंगे जहाँ पे है कि यहाँ कुछ हो जाएगा, बट यार एक मैप तो जीत सकते थे, बट एंड में थ्रो कर दिया, एंड में पूरा पैनिक कर दिया उन्होंने। वो तो थ्रो था, मतलब पैनिक जो करा वो थ्रो कर दिया पूरा गेम एंड में, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता अगर किसी को तो वो नहीं कर सकता रोड कुछ, इफ़ यू डोंट नो यू नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस यू कांट डू एनीथिंग। अपने बंदे डायोसिस भाई, व्यूअर की बात छोड़ो, मैं तो ये बोलूँगा तुम खेलो, खतरनाक खेलो, व्यूअर्स अपने आप आएंगे, ठीक है? मैं नहीं खेलता हूँ CS, मैं CS वालों को देखता हूँ, मैं नहीं खेलता था एपेक्स, मैं तो जब मेरे पास PUBG मोबाइल खेलता था मैं इसू को तब देखता था एपेक्स में, तो व्यूअर्स का छोड़ दो, अच्छा खेलो, खतरनाक खेलो, व्यूअरशिप आ जाएगी, नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ? व्यूअरशिप आएगी रूट, यहाँ चाहते हैं व्यूअरशिप पहले आ जाए, नहीं होता भाई वो, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, आप कुछ भी अच्छा खेलो डूड, व्यूअरशिप आएगी, क्यों नहीं आएगी व्यूअरशिप? मैं बस ये पूछता हूँ क्यों नहीं आएगी व्यूअरशिप? बट पहले व्यूअरशिप मत मांगो ना, लाइक मतलब आप तो ये बोल रहे हो ठीक है भाई आप मेरे को IIT एडवांस में एडमिशन दे दो, मैं पेपर बाद में क्रैक कर लूँगा 4 साल बाद, भाई ऐसा नहीं होता, पहले एंट्रेंस होता है फिर कॉलेज में जाओगे ना तुम, पहले पेपर होगा ना तुम्हारा फिर कॉलेज में जाओगे। यहाँ लोग कहते नहीं हम IIT में पढ़ेंगे 4 साल बाद पेपर देंगे हम लोग, वो नहीं होता है रूट, पहले ही नहीं आ जाता कोई उड़ के। मेरी 1-2 वॉचिंग भी होती है रात को, मैं फिर भी स्ट्रीम कर रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं अभी जस्ट मैंने कितना ही टाइम हुआ, मेरा तो कुछ भी टाइम नहीं डाला मैंने, मैं तो PC गेम भी नहीं खेलता था, मैं मोबाइल से आया हूँ, मैं तो मोबाइल गेम से आया हूँ, मैं फिर भी इतना अच्छा खेल पा रहा हूँ अभी, लाइक मैं तुम्हें अगर क्लिप्स दिखाने बैठूँ तो बहुत तगड़ा खेल पा रहा हूँ मैं अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने अभी टाइम डाला ना, आई थिंक 800 आवर्स पे, मैं ये नहीं बोलता 1800 आवर्स पे बहुत खतरनाक खेलने लग जाऊँगा। हाँ देखो अपनी भी चॉइस हो सकता है किसी को CS पसंद हो भाई, बट यार पहले काम तो करो यार, पहले मेहनत तो करो। किसान पहले ज़मीन को जो 100 चीज़ें करता है वो फिर जाके फसल लगती है, क्योंकि हमारा ज़मीन है हमें पता कैसे लगती है। यहाँ पे कहते नहीं मैं करूँगा कुछ नहीं, अपने आप वो लग जाए फसल, वो कट भी जाए, वो घर पे भी आ जाए छटके, नहीं होता भाई, करना पड़ता है रूट, ज़िंदगी में मेहनत लगती है। और सीन क्या हो गया कि इंडिया में ना यहाँ पे वो PUBG मोबाइल वगैरह फ्री फायर ईजी है ना, तो लाइक बंदों को लगता है ठीक है यार इससे हो रहा है तो क्या करना है। अगर तुम्हारे आसपास मीडियोक्रिटी प्रमोट हो रही है या मीडियोकर बंदे ऊपर जा रहे हैं तो तुम हार्ड वर्क क्यों करोगे?
Dude, देखो, there are people who play games for fun, ठीक है. There are people who play games for fun, but I cannot play games for fun right now. I play the game to improve. Otherwise, फन के लिए जो गेम खेल रहा है वो बेकार आदमी है. लाइक उसकी जगह तुम और कुछ कर लो, डिवेलप पे स्किल, पढ़ाई कर लो, उसकी जगह तुम्हें जॉब मिल जाएगी यार. आई वॉन्ट टू डू समथिंग हेयर, दैट्स वाई आई एम सीरियस अबाउट हेयर. अगर आपने कुछ करना है तो उसको लेके सीरियस होना पड़ता है डूड. टॉनिक भाई, हर जगह फन नहीं होता जिंदगी में डूड. वाइल्ड ड्रिफ्ट लक्ष्य, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, वाइल्ड ड्रिफ्ट इज़ अ डिफरेंट गेम. उसकी जो उसका जो मतलब एबिलिटीज़ है ना, तुम कोई भी मोबा देख लो, लाइक मोबाइल लेजेंड्स देख लो, अरीना ऑफ वैलोर देख लो, और भी कोई देख लो, उनकी एबिलिटीज़ इतनी डेप्थ वाली नहीं है. वाइल्ड ड्रिफ्ट बहुत डेप्थ वाली गेम है और मोबास में बहुत टाइम लगता है. डूड मुझे पता है ना, पहले तो ये रहता था हमारा कि बस हमें बिल्ड लगाना है, ठीक है, सिर्फ बिल्ड लगाना, अपना बिल्ड ये सेट करा, ये हो गया, बेस्ट प्लेयर का बिल्ड देखा, लगा लिया. बाद में मेरे को पता चला 1-2 साल खेलने के बाद कि भाई काउंटर बिल्डिंग भी होती है. कभी कभी आगे वाले अपना बिल्ड चेंज भी कर लेता है तुम्हारा देख के. अच्छा इसने आर्मर पेनिट्रेशन वाला लगाया तो मैं उसका काउंटर लगा दूंगा. अच्छा इसने क्रिटिकल लगाया तो मैं क्रिटिकल को काउंटर करने वाला लगा दूंगा. जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो तुम्हारा एनिमी टीम का बिल्ड देख के वो उसको वो करते हैं, अपना बिल्ड लगाते हैं. वो प्री मेड बिल्ड नहीं लगाते. जो नूब्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टॉप प्लेयर का बिल्ड देखते हैं, अच्छा इसने ये लगाया, वो हर मैच में वही लगाएंगे. वो नूब होता है वाइल्ड ड्रिफ्ट में. अच्छे प्लेयर्स का देखते हैं, अच्छा इसने ये लगा रहा है, ये तो मैं इसको काउंटर इससे करूँगा. और ऐसे भी बंदे होते हैं एंड गेम में जो 4-5 बार बिल्ड चेंज करते हैं अपना. समझ रहे हो, ऐसे ही बंदे होते हैं जो बिल्ड चेंज करते हैं. तुम्हारी शक्ल देख के 4-5 बार बिल्ड चेंज कर देते हैं वो. वाइल्ड ड्रिफ्ट बहुत मुश्किल गेम है बे. वो मोबाज आर लाइक 2-3 मतलब 2 साल भी तुम घिस लोगे ना तो एक बंदा ऐसे आएगा 1v5 करके चल जाएगा हर बार. And that's a story for Group A. Over at the Group B, I could say the same for Paper Rex, 2-0 against Fancy United, 2-1 against Persija Esports. But at the end of the day, as much डोटा भाई बहुत टाइम लगता है उसमें. आई थिंक 4 साल लगते हैं उसमें, मतलब प्रो बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है. अगर खतरनाक लेवल पे खेलने हो तो 3-4 साल लगेंगे डोटा खेलने में. तभी तो मैंने हाथ नहीं डाला उसमें. That is fucking hard dude. Like मुश्किल है डोटा, not easy. यार मैं एपेक्स इंडिया में सीन के लिए नहीं खेल रहा डोटा. लाइक आई डोंट प्ले एपेक्स फॉर दैट. आई प्ले एपेक्स फॉर मी बिकॉज आई लाइक द गेम. आई डोंट केयर इफ इट्स डेड और नॉट. मेरा चल रहा है, मेरा माइंड फक नहीं हो रहा, सही है. वैलोरेंट में मेरा माइंड फक होता है, लाइक गधे आते हैं. आई डोंट वांट दैट. Apex, if you are good, you can play alone all day without getting bored. मैंने 14 घंटे Apex खेल लिए हंसते हुए, और बोलो वो भी पिट रहा था, फिर भी मजा आ रहा था. और उसमें अभी बेटर हो रहा हूँ बहुत ज्यादा. मैं क्लिप्स डालूंगा अभी. यार डोटा इज कॉम्प्लेक्स बट what can you do dude? Like even despite falling down to the lower bracket, they were able to flip the switch and get the tournament mode going. Playoffs mode, South Build Esports, definitely something that we have to look out for going South into Build. the knockout stages. Now, we've seen the teams play out throughout the entirety of the week, and we've been expecting मोबाइल में भी कुछ नहीं होगा dude. Like इंडिया में है शोशा, इंडिया में शोशा. इंडिया में वो गूदा नहीं है कि मेरे को बेस्ट बनना है.
यहाँ पे है शोशा, बस वो बाहर वाले उनका सपना ही है बेस्ट बनना, वो सपना देख के उसके पीछे दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ पे शोशा बस चैट में बोल दिया मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो बाद में दिख जाता है इंटरनेशनल में। लाइक surprise everybody in just how hyped they're already going to be. I mean, moving into it, you're यहाँ शोशा है hype, but when we actually get to it, man, oh man, how many teams? वैलोरेंट यार अभी फिलहाल तो मेरा मन ही नहीं कर रहा वो गेम खेलने का। लाइक argue that इतना तगड़ा खेलना शुरू कर दिया था, 1-1 टैब भी दे रहा था सबको। पिछली स्ट्रीम में जाके देखोगे ना, जो लास्ट टाइम मैंने वैलोरेंट खेली है, मतलब धोया सबको, पकड़ पकड़ के धोया उनको, 1-1 टैब से धोया उनको। बट मन नहीं करता यार, गधे आते हैं उस गेम में। नहीं होगा, बीजीएमआई में शर्त लगा लो। देखो यार मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। पीसी सीन तो भूल जाओ तुम इंडिया का। यार मैं तो बोलूँगा क्रिकेट खेलो, मैं जो कम से कम सरकारी नौकरी तो मिलेगी तुम्हें। getting 2 teams in the Asia Pacific region to represent in the first ever Masters for the year. And before we wrap up the entire show, any final thoughts going into the knockouts, guys? तुम्हें पता क्या हुआ अभी? क्या हुआ था अभी जी, मेरी मम्मी आई, मैं लाइक स्ट्रीम के बाद कोवैक्स करता हूँ ना 2-3 घंटे, तो मैं वही कर रहा था। तो मम्मी यही पास में बैठी, कहती बेटा तू पबजी खेलना, पबजी मोबाइल खेलना, उसमें तेरा ज़्यादा, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने बोला मम्मी ये पीसी है, इधर टाइम लगता है, ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वो इजी है। तो कहती तू वो करना, देखना बाहर वो कर रहे हैं बच्चे दूसरे। तो मैंने बोला वो मम्मी इधर ही करते हैं, बाहर जाके उनको मार ही पड़ती है। मम्मी मेरी पता क्या बोलती है, उनको बाहर जाके मार पड़ती है, मतलब ये बाहर नहीं जीत रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी ये नहीं जीत रहे हैं बाहर। जैसे मैंने मम्मी को बताया ना, मम्मी ये नहीं जीतते बाहर, तो मम्मी कहती, तो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा, वो कहती ये उछलते तो बहुत है इतना इतना यूट्यूब पे। मतलब मेरी मम्मी को भी पता है पबजी के बारे में, कहती तो उछलते बहुत है, बाहर नहीं जीतते। मैंने बोला नहीं, कुत्ते की तरह मार पड़ती है। कहते फिर क्या फायदा। only expecting the unexpected at this point. I'm only going to be looking forward to being surprised and being amazed at what we see come next week. Well, the wave that is rising in the Pacific is getting higher and higher. It's all about to crash. We'll tune in here at the Asia Pacific Challengers later on this week for अरे रिफ्लेक्स भाई तू फालतू में क्यों सुपर चैट कर रहा है भाई? मेरे को फ़ोन ही करके बोल देता सीधा, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तुम्हें नहीं है सुपर चैट करने की ज़रूरत। बाय द वे थैंक यू फॉर द सुपर चैट, बट ये मैं वो कोई क्रिएटर नहीं हूँ कि लाइक इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू हैव टू सुपर चैट, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो बंदा भी नहीं हूँ जो कहता है कि व्हाट्सएप में मैं ऐड करूँगा तुम मेरे को पैसे दो। लाइक मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रीमर्स देखे हैं, उन्होंने पर्क रखा हुआ है, इफ़ यू बाय दिस पर, अगर तुम उनकी वाली मेंबरशिप खरीदोगे तो वो तुम्हें व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे। लाइक मैं जब काउंटर स्ट्राइक में थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ था तो क्या हुआ, मुझे चीज़ जाननी थी काउंटर स्ट्राइक में, मतलब सिर्फ ये जानना था ये मैच कैसे लगाते हैं ऐसे, हाँ बस ये जानना था मुझे कि सर्वर कैसे सेटअप करते हैं। डूड एक बंदा था CS वाला, ठीक है, उसने चैनल शुरू करा था, तो बस उसको बताना ही था कि भाई ऐसे सर्वर शुरू करना। मैंने उसे पूछा, उसने मेरे को मुंह पे कहता भाई आप मेरे चैनल की मेंबरशिप खरीदो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने बोला डूड लाइक या तो ऐसा कुछ होना तेरे को 1-2 दिन लगे तो मैं खरीद भी लूँ मेंबरशिप, लाइक तुझे सिर्फ मेरे को बताना है भाई यहाँ जाके ये करना है बस, वो भी 60 सेकंड का काम भी नहीं है। और वो बंदा कहता है तो मेरी मेंबरशिप खरीद, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। फिर मतलब तुम कितना नीचे गिर सकते हो यार, मतलब डूड मैं सही बोल रहा हूँ, हाउ लो कैन यू स्टूप। भाई उसने मेरे को कहा भाई मैं मेंबरशिप पाल हेल्प यू एक कस्टम रूम बनाना बस। पैसे के लिए तो गेमिंग मत ही करो भाई। सक्षम कुक रहती भाई, थैंक्स फॉर 22।
नहीं ये पैसे मेरे को नहीं मिलते हैं एक्चुअली, तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हें करना होता तो पेटीएम वगैरह ही कर दिया करो। ये एक तो 30% यूट्यूब ले लेता है और ऊपर से ये मेरे को तभी मिलेंगे जब $100 होंगे। ये बंदे बहुत सुपीरियर खेले हैं, मतलब फिलीपींस वाले अपने बंदे थे ही नहीं इस लेवल के। अब वो किसी को बुरा लगे या वो लगे, दे जस्ट प्लेड, दे वर फार मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले मैकेनिक्स। अगर क्लोज कॉल होती है समझ आता, मतलब स्लॉटर हुआ है सीधा सीधा। यार अगर तुमने इम्प्रूव करना हो ना, इम्प्रूव 6 महीने में भी हो जाता है भाई, कुछ नहीं से 6 महीने में भी इम्प्रूव हो जाता है, बट उसके लिए भाई आग चाहिए। यार मैं बस इतना बोलूँगा, जब तुम अगर तुम देखो यार कॉम्पी वूम्पी तभी खेलो, ये मेरा मानना है, हो सकता है कोई इससे डिसएग्री करता हो, बट मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर तुम टॉप 30 रेडिएंट में जा सकते हो ना, या टॉप 25 टॉप में, तुम उसमें जा सकते हो इजी हर सीज़न, मतलब सोलो खेल के, तो कॉम्पी खेलो वरना मत खेलो, क्योंकि जो कंपटीशन रहता है वो टॉप पे रहता है, 2 या 3 बंदों में ऊपर। अगर तुम इमॉर्टल में मतलब इमॉर्टल भी नहीं पहुंच पाते बड़ी मुश्किल से, तो फिर कॉम्पी खेलने का फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर रेडियंट 1 to 30, क्योंकि कोवैक देख के मुझे इतना समझ आ गया कि कंपटीशन कहाँ होता है। टॉप 100 में कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन शुरू होता है टॉप 10 में कोवैक में। मतलब उनका तो स्कोर ऐसे होता है, मतलब रॉकेट की तरह चांद में पहुंचता है वो, 100 वाले का कुछ भी नहीं होता। भाई मैं तो ये बोलूँगा, अगर तुम रेडियंट जा सकते हो लाइक 1 to 30 इजी सोलो खेल के, तो कॉम्पी खेलो, नहीं तो फ़ायदा नहीं है वो कोई। यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं रेडियंट लग गया बस हो गया, रेडियंट वाले भी टट्टी खेलते हैं यार। तो सब रोज़ा क्या चिल्ला रहा होता है, मतलब ये रेडियंट गेम है मैंने, जो इनको सालों को पता नहीं है कुछ भी, और रेडियंट लगा के बैठे होते बंदे। कितनी क्लिप्स है इतनी, हीको ने भी बोला है भाई फेसिट वगैरह दो वैलोरेंट का, ये साले रेडियंट मैच में ये बंदे हैं ये। वही रहते हैं, ऊपर ही बैठे होते हैं वो दोनों, मतलब एससीए में तो वही बैठे होते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे बैठना बहुत बड़ी बात होती है रूट, लाइक 2-3 सीजन से। अगर कोवैक के स्कोर्स खोलोगे ना, टॉप 100 में जाना बड़ी बात नहीं है, बट जो नंबर 1 जो नंबर जो 3-4 होते हैं ना ऊपर वाले, वो कंपटीशन वहाँ होता है। क्या दे दिया भाई, जॉब बता दो रिटार्ड के लिए। मैं रिटार्ड के लिए क्या ही बोल सकता हूँ मैं। देखो यार मैं जो भी बोलता हूँ सीधे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आधे तो मैं फैक्ट्स भी बोलता हूँ, अब किसी को बुरा लग रहा हो आई एम रियली सॉरी, बट भाई सच कड़वा ही होता है। पेटीएम चेक करो, कर रहा हूँ यार, आई रियली वांटेड देम टू विन, बिकॉज if they win it's gonna open a lot of Nakib bhai, thanks dude, thanks for the money, thanks dude, reflex bro. What can I do, what can I do? मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ, लाइक display capture, like let me show you guys what I'm talking about. तुम्हें पता लगेगा कंपटीशन क्या होता है। मैं अभी बताता हूँ,
भाई मैं तो कभी कॉम्पी ज्वाइन ना करूँ जब तक मैं एक्सेप्शनली बहुत अच्छा नहीं खेलता या मैं मतलब टॉप रैंक्स पे हर बार पहुंच पा रहा हूँ, ऐसा नहीं खेलता। आई एम नेवर गोना प्ले कॉम्पी इन माई होल लाइफ। कभी नहीं खेलूँगा मैं, फ़ायदा ही नहीं है कोई खेलने का। गाइस आपको दिख रहा है ना सब कुछ? मैं कभी नहीं करूँगा डूड वो चीज़ें। मॉन्सी भाई मॉन्सी यार, मतलब लोग बहुत तगड़ा खेलते हैं यार। और उन सबसे बड़ी बात है उनके पास सर्वर्स हैं डूड, लाइक, और पीसी पार्ट्स सस्ते हैं। अभी दिखाता हूँ। जी वाला तो बहुत गंदा हुआ था, वो तो स्टॉम्प था ना, मतलब वो मतलब मुझे भाई मतलब उसने जेट नहीं ली, उसने सोवा लेके कूद रहा था वो जी के ऊपर, और वो अनबिलीवेबल था लाइक, क्योंकि जेट से पीक करने में ना मतलब ठीक है तुम मतलब ये रहता दिमाग में यू हैव डैश यू कैन गो बैक, सोवा से पुश करने का ये मतलब है भाई तुम वापिस नहीं आ सकते। वो कूद रहा है बंदा, कूद रहा है उनके ऊपर, जी के ऊपर भाई, वो कूद रहा है बंदा। मैच देखो, एक में स्प्लिट में वो केओ लेके कूदा है, आइस बॉक्स में सोवा, वो कूद रहा है उनके ऊपर, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब वो ऐसे खेल रहा है, ऐसे गोल्ड वालों के सामने गेम खेल रहा हो, पता नहीं क्या सीन था उसका, वो कूद रहा है भाई। उसने जेट ली नहीं थी अभी, मैं तो ये सोच रहा था जेट होती तो क्या होता, खत्म हो जाता काम ही। वो मैं मतलब एक होती है यार, मैं झूठ नहीं बोलता, एक होती है डिफीट, जैसे ग्लोबली वीएलटी में चलता रहता है, मतलब बेस्ट ऑफ 5 होता है, एंड में जाके ओटी में जाके एक टीम बाहर हो जाती है, ठीक है। ग्लोबल और जी में वो रहता है, वो जो पेपर एक्स ने करा था ना, एक होती है हार कि आप थोड़ा सा, एक होती है ये वाली हार की, यानी भी बोलता है बेटा तुम एक काम करो, गेम गुम तुम्हारे बस की नहीं है, जाके खेती करो, ये नहीं होगा तुम्हारे बस में, मैं कर लूंगा। जब तुम्हें एनिमी ऐसे हराता है ना, इसका मतलब वो ये बोल रहा होता सीधा कि बेटा तुझसे नहीं हो रहा, तू खेती कर। और वो वाली हार थी खेती वाली कि तुम बेटा तुम खेती करो, तुम क्यों आए हो यहाँ, हम हैं ना यहाँ बैठे हुए। वो मतलब सीधा खेती वाली वो थी कि पेपर एक्स ने मुझे ऐसा पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि, और जो चैट थी रूट, जो एसके रॉसी स्पैम करते थे लोग दूसरों की चैट में, और जो उस दिन चैट थी टॉक्सिक डूड, मैं तुम्हें मैंने कमेंट्स में तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब ओहो मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। मैं बताता हूँ मैं जो कह रहा था तुम्हें, वो क्या रहता है, जैसे मान लो, हाँ मान लो मैं बताता हूँ, 1-1 लिखो चैट में जो है भाई, वो है आधी डिफीट ऐसे होती है, वो एनिमी तुम्हें बोलता है बेटा तुम खेती करो ना, तुम क्यों आए हो यहाँ। डूड एक बार एक ना बंदा था, लाइक उनकी ना बड़ी मोनोपोली चलती थी स्कूल में, लाइक कि क्रिकेट में बैटिंग वही करते थे, हर बार वही करते थे, तो मतलब और मैं ऐसे था अकेला रहने वाला बंदा, तो लाइक उनकी ना ऐसे मोनोपोली थी, 3-4 बंदे बैटिंग करते थे, हमें बैटिंग नहीं देते थे ये लोग, मुझे नहीं देते थे, कभी बैटिंग दी नहीं इन्होंने। तो आई थिंक 5 साल हो गए थे, कभी बैटिंग दी नहीं मेरे को उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, मतलब देनी नहीं बैटिंग, खुद ही करते रहनी स्कूल में डूड। एक बार क्या हुआ, बाहर मेरा उस बंदे के साथ मैच हुआ, बाहर स्कूल के बाहर। उसने क्या किया, मेरे को बच्चे दे दिए, कुछ बड़े बड़े ले लिए डूड, माँ कसम कह रहा हूँ, उस बंदे को मैंने इतना तोड़ा ना, इतना तोड़ा, वो मतलब कहता वो मतलब मेरे सामने बोलता कि देख इसको मैं कैसे आउट करता हूँ अपने दोस्तों को। डूड उसको मैंने छक्के चौके मार के धुड़ा के, मतलब वो रो पड़ा बंदा। वो अगले दिन मैं स्कूल गया, कहता है इसको बैटिंग तो ये बहुत अच्छा खेलता है। 5 साल से साले ने बैटिंग नहीं दी थी, एक दिन इंस्टेंटली जब मार खा गया है, कहता दो इसको बैटिंग दो। मैं जो वो होती है यार विक्ट्री,
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या सीन है इंडिया में कॉम्पिटिटिव का, क्या सीन है। आओ आओ मैं बताता हूँ इंडिया में कॉम्पिटिटिव का क्या सीन है। ठीक है, देख रहे हो ना बंदे, आओ बताता हूँ। जो पबजी खेलते हैं उनको भी समझ आएगी। मान लो ये वैलोरेंट है ये वाली, ठीक है, मान लो ये वैलोरेंट है एंड ये टॉप 100 वाले रेडिएंट है, ठीक है। मान लो अच्छा 9000 टारगेट, सॉरी ये 9000 टारगेट्स कैसे खुल गए, ठीक है अभी बताता हूँ मैं। मान लो ये जो है ना 116 टारगेट स्मॉल, हाँ इसमें कितनी एंट्रीज हैं, इसमें है 2,16,000 एंट्रीज, ठीक है। मान लो ये बंदे हैं ना 1 से लेके 100 तक, यहाँ तक, ठीक है, ये रेडिएंट है, इसके नीचे वाले सारे इमॉर्टल हैं, ठीक है, इसके नीचे वाले सारे इमॉर्टल हैं डूड। मेरा स्कोर कितना है, मेरा 1230 है स्कोर और मैं 99.2 परसेंटाइल में हूँ इसके, समझ रहे हो, मतलब 99.2 परसेंटाइल पे हूँ मैं। 1200 बहुत स्कोर होता है, किसी इंडियन को कोई बोलोगे जो 15 साल से गेम खेल रहा है तो अगर आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है उस बंदे के लिए, बट नहीं आएगा, ये इतना मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, उसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। मान लो टॉप 100 वाले, ठीक है, अब ये मेरा स्कोर है ना ये वाला, अभी तुम्हें एक दिखाऊं, ठीक है, टॉप 100 वाले का स्कोर देखते हैं। लाइक 1400 स्कोर है उसका, 1400, और ये बंदे आधे सिर्फ 1400 पे पहुंच के बोलते हैं ठीक है हम कॉम्पिटिटिव प्लेयर है। नंबर 1 का स्कोर देखोगे 1700। मैं कह रहा हूँ जिस दिन को इंडिया में 1790 मार जाए ऑन एवरेज, मैं गेम खेलना छोड़ दूंगा, मैं उस बंदे को अपना पीसी दान कर दूंगा। गोस्टी यार अभी तो मैं सोया नहीं हूँ, कंपटीशन है ही यहाँ पे, देखो 1700 पहले 3 बंदों में कंपटीशन है बस, पहले 3 में, बाकी 1600 भी कंपटीशन है, 1700 बहुत होता है। तुम किसी भी इंडियन बंदे को बोल दो, किसी भी इंडियन बंदे को बोल दो 1700 मार दे, एसके रस्सी को बोल दो 1700 मार दे, डेथ मेकर को बोलो डूड फटक भी नहीं सकता इसके आसपास। और ये प्रिसीजन टास्क है, ये भी नहीं है कि एम लैब्स की तरह बकवास है, ये काम आता है, ये प्रिसीजन वाला टास्क है। और देखो कंपटीशन कहाँ से शुरू होता है, चलो 1600 को भी मान लेते हैं। ये देखो अगर मैं यहाँ इसको 5 पे, रुको 10 पे चलते हैं, 10 पे 1600 है ना, ये देखो गिरना शुरू हो गया, मतलब 20 से है कंपटीशन, 20 से टॉप तक कंपटीशन है, बाकी इतना टॉप 100 में नहीं है। यहाँ सिर्फ रेडिएंट पहुंच के सोचते हैं भाई हो गया, रैंक लग जाता है भाई, रैंक लग जाएगा। अब 5-6 साल CS के लिए तो रेडिएंट तो लगेगा ही भाई। डायोसिस भाई मैं बस इतना बोलूँगा, हार्ड है कि नहीं है, मैं बस ये बात पूछना चाहता हूँ कैसा टास्क है। 930 भी बहुत है भाई, मैंने इमोर्टल वालों से करवाया, उनका 600 आया और बोल 930 बहुत होता है, 930 बहुत है। ओके गोस्टी चक्कर है, मैं सोया नहीं हूँ यार, मैं तेरी बात ही मतलब मैं तेरी बात ही याद करके रात को सोऊंगा। अभी रैंक पहुंच जाओगे यार, एक होता है कि आप सच्ची में डिजर्व करते हो रैंक, वो बहुत बड़ी बात है। स्क्रीम के लिए भी मुश्किल है डूड, 1700 ना, 1700 फटक भी नहीं सकता स्क्रीम आसपास डूड। स्क्रीम 1200 मार सकता है, 1200-1300, 1700 इम्पॉसिबल है उसके लिए, उसको बहुत टाइम डालना पड़ेगा एक्चुअली। प्योर एमरजोन का मुकाबला ही नहीं है डूड, एमिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है हम लोग।
वो मैं सीधे बता रहा हूँ, जो जो एमर्स है ना, मतलब जो एमर्स है टॉप 5 वाले हर टास्क में, वो अगर वैलोरेंट खेले उन्हें स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं है, मिस नहीं करते वो लोग। वो ये ना अभी प्लेटो को तुमने वो कर लिया है भाई। पढ़ाई बहुत इजी है, पढ़ाई बहुत इजी है। तुम्हें सिर्फ पढ़ना, एग्जाम देना है। कोई दूसरा तुम्हें मतलब तुम्हारे नंबर नहीं कम कर रहा उधर, तुम जितना पढ़ोगे तुम्हें उतने नंबर मिल जाएंगे। पर गेमिंग में क्या है, तुम्हें मेहनत भी करनी है और दूसरा तुम्हें नीचे गिराने में भी लगा है। मतलब कंपटीशन है वहाँ पे। वो अच्छा खेल गया तो तुम नीचे आ गए। पढ़ाई में क्या है, तुम्हें सिर्फ पढ़ के जाना और तुम्हें इंडिविजुअली नंबर मिलेंगे। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे नंबर कम नहीं करा सकता। जो 1700 वाले के आगे नहीं खेल सकते तुम गेम डूड। डूड ये जो है ना 1 wall 6 टारगेट स्मॉल, लोगों को एक बात समझ नहीं आती। दिस इज माई हाई स्कोर, दिस इज नॉट माई एवरेज। अगर ये मेरी एवरेज हो ना अगर ये मेरी एवरेज हो डूड, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ये जिसकी एवरेज होगा ना वो तोड़ देगा। अभी तो जो वोल्टेइक वालों ने तो मतलब गेम ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला हाई स्कोर काउंट नहीं होगा, तुम्हें एवरेज स्कोर दिखाना पड़ेगा। मतलब ये मारने में ना, ये वो करता है चैट में डायोस, उससे पूछना, ये मारने में सदियां लग जाती हैं। और ये मेरा हाई स्कोर है, पता नहीं कैसे मैंने ये पता कितनी सेंसी में मारा वैलोरेंट की, 0.8 into 800, जो कि इम्पॉसिबल है। और ये उसमें पहली बार पे मैंने मारा है स्कोर, जो कि डबल ट्रिपल सेंसी है। और ये मेरा हाई स्कोर है, दिस इज नॉट एवरेज। तुम्हारा एवरेज मैटर करता है, हाई स्कोर हर बार नहीं मार सकते तुम। 1700 वाले डूड, लाइक तुम्हें दिखाऊं, एम दिखाता, रुक जाओ, लेट मी शो यू यार ये कॉपीराइट स्ट्राइक मार गया। अच्छा ठीक है, इसी का रुको यार, ये देखो अभी रुको यार, कॉपी तुम्हें दिखा देता हूँ 1700 वाले का कैसे दिखता है। मैंने इसे प्रिसाइज एमिंग नहीं देखी आज तक अपनी ज़िंदगी में, लगता है देखूँगा अभी नहीं, क्योंकि इसके लिए सेटअप चाहिए। या भाई ये देखो, कहते हो ना ये देखो, ये देखो दिख रहा है ना चैट में तुम लोगों को, ये तुम्हें अभी दिखेगा भाई, ये देखो। भाई ऐसे मार देखो इंडिया में डूड, माँ कसम ऐसे मैं मार लूँ ना, अगर मैं ले लूँ, मैं जी मार दूँ लोगों की। ये मतलब इससे फास्ट नहीं मार सकते तुम, इंसान इससे तेज नहीं मार सकता। भाई साहब भाई उसने मार लिया भाई डूड। मुझे क्लीन देखना है कितना आ रहा है, एक्यूरेसी से पता चलेगा। 140 है, 100% accuracy dude, 100% accuracy. He hasn't missed a single fucking shot. तो मैं नहीं 100% नहीं है, 4 शॉट मिस करा हुआ। ये ऊपर वाले हैक करा सारे, 4,000 वाले, लाइक 1700 वाले लेजिट हैं, बाकी ये 2000 वाले कोरियन एमर ये सब हैकर हैं। भाई इतना भाई डायोस क्या हुआ, चोंगे भाई, हमारे तो अंडर ओवर फ्लिक नहीं जाते अभी, उसका तो परफेक्ट ट्रेस हो रहा है।
अरे को ये भी देखो 1 ball 6 टारगेट टी। ये वाला देखे ना टी, ये टेक्निक के लिए होता है, इट्स बेसिकली फॉर टेक्निक। भाई ये जैसे मार रहा है ना, मैं इसका 20% मार लेता हूँ बट इससे तगड़ा एम नहीं कर सकते तुम, जितना मर्जी मेहनत कर लो। ये अंत है, जितना मर्जी मेहनत कर लो तुम्हारा एम ऐसा ही बनेगा एंड में, जैसे इस बंदे का। एक बंदा नहीं है पूरे इंडिया में जो मार सके, एक बंदा नहीं। लगता है मुझे वो पहला बंदा बनना पड़ेगा। बहुत प्रेशर है मेरे कंधों पे भाई। ये टी वाला टास्क डू, अगर ये 100% एक्यूरेसी पे हुआ ना, माँ कसम बह जाऊंगा मैं मूत की तरह। क्या करोगे तुम इसके आगे गेम खेल के, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। सीधे सीधे वाली गेम में तो उड़ा देगा। I knew it. High accuracy is always the way to go for me. It's always the way to go for me. ठीक है भाई, मतलब तुम क्या, मतलब भाई तुम क्या गेम खेलोगे इसके सामने, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। चलो स्टैटिक है, ये तो स्टैटिक है, अगर डायनेमिक में भी ऐसा हो तो खत्म है भाई। वैसे इतना एम का फ़ायदा नहीं है गेम में, क्योंकि गन मैकेनिक्स भी इस तरीके से होते हैं कि तुम अब्यूज़ ना कर सको। लाइक जैसे शेरिफ रीसेट होती है हर राउंड के बाद, बट इतना स्किल होगा बंदा क्या नहीं कर सकता। इस बंदे को वैलोरेंट खेलने नहीं आती, बट तुम देखना जो उसने वैलोरेंट की क्लिपें डाली है, जो पड़ता है ना शॉट, लगता है कुछ अलग है साला, कुछ अलग शॉट पड़ा है। इसकी गेम देख के ही लगता है नहीं यार, गेम इज़ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट गेम है ये। राइम भाई गो बैक वगैरह करो डेली कंसिस्टेंसी के साथ। लाइक मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे कौन बंदा मेरे को स्टार्टिंग से देख रहा है, जब मैं कोवैक में मतलब शुरू किया था और मैं बोलता था मेरी ट्रैकिंग अच्छी नहीं है, मेरे जिटर्स आते हैं। हाँ वो गन मैकेनिक्स भी फिर ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा करे। मैं बताता हूँ, इम्प्रूवमेंट करनी हो ना यार, यार मेरी इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मैं तो मानता हूँ किसी की भी हो सकती है। मैं ट्रैकिंग दिखाता हूँ। लाइक माई ट्रैकिंग वाज लाइक डॉगी शिट। ठीक है, डॉगी शिट थी मेरी ट्रैकिंग। मेरी ट्रैकिंग में जिटर्स आते थे। अभी मैं 1-2 ट्राई करता हूँ, ठीक है। अभी देखना ट्रैकिंग कितनी स्मूथ हो गई है मेरी। ये दिख रहा है ना तुम्हें? ये 2 मिनट को ऐप ओके ठीक है। देख रहे हो गाइस, मेरे जिटर्स गायब हो गए। मतलब जैसे पहले जिटर्स आते हैं ना, इफ़ यू हैव सीन मी बिफोर, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए चिपका पा रहा हूँ उस डंडी के साथ, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। वो देखो, एंड मेरा घंटा एम ऐसा नहीं था। एंड इन गेम भी मैं आराम से ट्रैक कर पा रहा हूँ बंदे। ये देखो, मेरा इतना स्मूथ था ही नहीं। और मैं बोलता था ना मेरा राइट साइड एम अच्छा नहीं है, लेफ्ट साइड बहुत अच्छा है। बीच में छूट रहा है।
ठीक है, दिख रहा है किसी को? बारडोस कोई गेम नहीं खेलता, वो प्योर एमर है। भाई मतलब बहुत फ़र्क है, मतलब बहुत हैंड कंट्रोल सुधर रहा है मेरा। मेरी माउस की तार, इसकी माँ की आँख, साला यही अटकनी होती है क्या? ये जो माउस मेरा अटक रहा है ना तार, यार गाइस मेरी ना माउस की तार अटक रही है वहाँ पर। हम 2 मिनट रुकना, अभी इसको सीधा कर लेते हैं। ओ भाई गॉड, क्या ट्रैक हुआ है स्टार्टिंग में। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, यू कैन इम्प्रूव इफ़ यू वांट टू। भाई ट्रैक अच्छी हो रही है यार, तार अटक रही थी मेरी माउस की ना। देखो मैं ज़्यादा स्टिक कर पा रहा हूँ उसके साथ। ए ओ भाई गॉड, लाइक इट विल टेक सम टाइम बट ट्रैकिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग दैट यू कैन मास्टर। देख रहे हो इतनी पतली ही डंडी है, बट आई एम एबल टू स्टिक इट। इसमें 6000 के पार जो स्कोर होता है ना, आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। और 6000 के पार ही है, आप देखते हैं कितना आता है। और देखो लाइक देख रहे हो, लाइक माई स्कोर देखो 7000। और ट्रैकिंग देखो, तुम ट्रैकिंग देखो गाइस, तुम देख रहे हो ना ट्रैकिंग इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई? देख रहे हो वो पतला सा है बट आई एम एबल टू स्टिक इट। अब मेरा ना ये वायर है ना, माँ की आँख ये तंग कर रही है, मेरे को वायरलेस चाहिए। बट पहले के मुकाबले जो जिटर था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने अभी स्कोर रन करा है, वो देखो बिल्कुल स्टिक कर पा रहा हूँ वो पतली सी डंडी के साथ, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था। और देखो पतली ही डंडी के साथ जो स्टिक कर पा रहा हूँ। अभी देखो स्कोर कितना आया है। मैं बस एक ही बात बोलूँगा, करना हो तो वो देखो 7000 स्कोर है। हाई कितना है मेरा? 72, 790। 100 से रहा हूँ, इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है इम्प्रूव। और अभी मैं एक बात बताऊँ, माई सेंसी इज़ टू हाई फॉर ट्रैकिंग, बट फिर भी उसमें कर पा रहा हूँ। मेरी स्कीट वाली में बहुत गंदी थी ट्रैकिंग। चलो कौन सी जिम जाते हो भाई? जिम नहीं भाई, यही जिम है मेरी। चलो गाइस, आई थिंक आज मैं सोया नहीं हूँ, मैं अपना स्लीप साइकिल ठीक कर रहा हूँ ताकि दिन में स्ट्रीम कर सकूँ। तो मैं अभी आई थिंक सोऊंगा नहीं, आज रात को ही सोऊंगा। अभी आज शायद गेम ना खेलूँ। अर्श भाई आपको क्या करना है? रुको यार, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर ना एक वीडियो। लाइक लोगों में बड़ी वही है बेचैनी, लोगों को पता नहीं करना कैसे। हाउ टू फाइंड सेंसी। देखो आप किस पे कंफर्टेबल हो, लो पे ही होता है बंदा कंफर्टेबल, हाई पे बड़े कम होते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर अपन। ओके मैं जा रहा हूँ, लाइक